Hey, hi everyone. So in this video, we are going to cover another chapter of CA final auditing, audit of consolidated financial statement. So let's start our discussion. Yeah, yeah. So in this chapter, we are basically going to see that how to audit consolidated financial statement of a company. Okay. So we'll start our discussion with what is financial statement. Section 2, subsection 40 of the Companies Act defines financial statement. It states that balance sheet of the company, statement of profit and loss, cash flow statement, notes to account and any other explanatory material, statement of changes in equity if applicable. Okay, so these five things fall under the category of financial statement as per section 2 subsection 40 of the Companies Act. So every company is required to prepare of their financial statement, that means balance sheet, profit and loss, cash flow statement and all, for a period. Okay, and then those financial statement which is being prepared by the management is get audited by the independent auditor. So when a company prepares their financial statement based on their books of account for a period, we say that it's their standalone financial statement. Okay, that means standalone financial statement of a company provides true and fair position regarding that company only. Okay, उसमें किसी भी उस कंपनी के सब्सिडरी, एसोसिएट्स या जॉइंट वेंचर के अकाउंट्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. राइट, स्टैंड अलोन मीन सिर्फ उस कंपनी का अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हो रहा है, सो विल से दैट इट्स देयर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके ऑडिट के रिगार्डिंग वी हैव टू सी इन दिस चैप्टर. ओके, तो देखिए, सपोज एक कंपनी का कुछ सब्सिडरी है, एसोसिएट कंपनी है और कुछ जॉइंट वेंचर्स है. राइट, तो सेक्शन 129 सब सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइज दैट अगर किसी कंपनी का कुछ सब्सिडरी है, कुछ एसोसिएट्स है एज वेल एज जॉइंट वेंचर्स है, सो उस कंपनी को अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बनाना है. राइट, और एक उसको ऐसा भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है जिसमें वो अपने सब्सिडरी के अकाउंट्स, जॉइंट वेंचर्स के अकाउंट्स और एसोसिएट कंपनी के अकाउंट्स को कंसोलिडेट करेंगे, दैट मीन्स मर्ज करेंगे. तो जब हम ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि मेरा स्टैंड अलोन भी है और मेरे जॉइंट वेंचर्स, एसोसिएट्स और सब्सिडरीज का भी अकाउंट्स कंबाइंड है, दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Further, AS 21 and Ind AS 110 governs that how to prepare financial statement consolidated. Okay, see how to prepare. This accounting standard or Indian accounting standard will always say that how to prepare, not how to audit. How to audit is defined in standards of auditing, right? So AS 21 या AS 110 we can say in Indian accounting standard, these two standards specifies that how to prepare consolidated financial statement and how to audit we will see in this chapter. Okay, so let's move towards the text of our ICI study mat. Audit of consolidated financial statement, chapter 8. Yeah, the first page is given here, chapter overview, and I am proceeding with that. See, mainly we are going to see in this chapter as legal provisions of the Companies Act 13 for the purpose of this consolidated financial statement. What are the responsibility of parent company and auditor? Parent company means holding company. Okay, that means the company which controls the composition of board of directors or holds more than 1/2 of the share capital of the company. Okay, उसके बाद हम लोग देखेंगे, 1 second, ऑडिट कंसिडरेशंस एंड कंसोलिडेशन. परमानेंट एक एडजस्टमेंट होता है, करंट पीरियड एडजस्टमेंट होता है. विल सी management representation, we will see how to report and the SEBI requirements in terms of consolidated financial statement, right? So in the introduction section, the basic things are written here, which I already told, that AS 21 or Ind AS 110 lay down principles and procedures for preparation and presentation of consolidated financial statement. Okay, see यहाँ पे ये फोकस करेंगे दैट ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है ना, चाहे वो इंड एस हो या फिर ओल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो, इट स्पेसिफाई ओनली द प्रिंसिपल्स एंड प्रोसीजर्स, नॉट हाउ टू ऑडिट, हाउ टू प्रिपेयर द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, सी कहता है व्हेन एवर अ पेरेंट डिसाइड्स टू और इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इट शुड डू सो इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट मीन्स AS 21 and Ind AS 110 under the relevant financial reporting framework. And here parent company means the holding company, right? After that it is telling that consolidated financial statement are presented to the extent possible in the same format as adopted by the parent for its separate financial statement. Means आप अपने स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जिस फॉर्मेट में बनाओगे ना, उस सेम फॉर्मेट में आपको बनाना है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, राइट? फिर कहता है द फॉर्मेट्स ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ PL एंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटीज एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 13. ये जो कंपनीज की बैलेंस शीट बनती है ना, कंपनीज की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है, दैट इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन द फॉर्मेट ऑफ शेड्यूल
3 to the Companies Act 13, right? So before going to the next page, I'll just brief that whatever written in this page. इस पेज में बस इतना ही बात हुआ कि AS 21 और Ind AS 110 में प्रोसीजर दिया हुआ है दैट हाउ टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फर्दर कभी भी किसी पेरेंट कंपनी को अगर प्रिपेयर करना होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो इट विल फॉलो द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. फर्दर जो फॉर्मेट होगा कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दैट शुड बी सेम विद देयर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी इज बीइंग प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद शेड्यूल 3 to the Companies Act 13. Yeah. So next page start with whatever is included in the consolidated financial statement. See, balance sheet, profit and loss, cash flow statement, statement of changes in equity or any notes to account or explanatory statement. It is same as whatever I have explained already. Okay. फिर कहता है an entity which prepares the consolidated financial statement either under any law or regulation governing the entity might be required to or otherwise engage the auditor for conducting the audit of CFS. ये consolidated financial statement को आयल से CFS. इट इज टेलिंग दैट जो भी एंटिटी CFS बनाती है ना उनको इंगेज करना पड़ेगा ऑडिटर फॉर कंडक्टिंग द ऑडिट ऑफ CFS. मतलब अपने CFS का भी ऑडिट कराना है. हाउएवर अ लॉ और रेगुलेशन गवर्निंग द एंटिटी में रिक्वायर द CFS टू बी ऑडिटेड बाय स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द एंटिटी. दिस मीन्स कभी ऐसा भी हो सकता है दैट वॉट एवर लॉ गवर्निंग दैट कंपनी इट में स्पेसिफाई दैट आपके जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिटर है आपको अपने CFS का भी ऑडिट उस ऑडिटर से ही कराना है. ओके सी यहाँ पे लिखा हुआ है that is the auditor who audits standalone financial statement of the entity. Then the guidance note on audit of CFS provides guidance on the specific issues and audit procedures to be applied in an audit of CFS. एक guidance note issue किया है अपने ICI ने for the purpose of auditing CFS, right? So उसे भी हम लोगों को follow करना है and apply करना है while auditing CFS. This guidance note can also be used while auditing consolidated CFS. Consolidated CFS prepared for special purpose to the extent applicable, but it does not deal with accounting matters arising on consolidation of the financial statement. See, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया हुआ है दैट इज स्पेशल पर्पस. कभी कभी क्या होता है कि CFS भी किसी स्पेशल पर्पस से बनता है. इफ़ यू रिमेंबर इन एसेट 200 वी हैव डिस्कस्ड द जनरल पर्पस फ्रेमवर्क एंड स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क. जैसे कोई बैंक अगर स्पेशली डिमांड करती है दैट वी वांट योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन कैश बेसिस, राइट? तो अगर किसी स्पेशल पर्पस से भी आपका CFS बना हुआ है तो यू कैन अप्लाई दैट गाइडेंस नोट एज एप्लीकेबल. ओके फर्दर इट इज टेलिंग दैट इट डज नॉट डील विद द अकाउंटिंग मैटर्स अराइजिंग ऑन द कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑब्वियसली ये जो गाइडेंस नोट है इट इज़ फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग. ओके या let's move to the next heading and it is consolidation of financial statement mandatory under Companies Act 13. See, it says that section 129 of the Companies Act, where a company has one or more subsidiaries including associate company and joint venture, it shall in addition to its own financial statement prepare a CFS of the company and of all the subsidiary in the same form and manner as that of its own. कहता है कि सेक्शन 129 के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपनी का एक या उससे ज़्यादा सब्सिडरी है इंक्लूडिंग एसोसिएट कंपनी एंड जॉइंट वेंचर तो उस कंपनी को इन एडिशन टू इट्स ओन फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक आई टोल्ड यू स्टैंड अलोन तो बनेगा ही ऑल्सो नीड टू प्रिपेयर अ CFS ऑफ दैट कंपनी एंड ऑल द सब्सिडरीज इन द सेम फॉर्म एंड मैनर एज दैट ऑफ इट्स ओन. जो उनके स्टैंड अलोन का फॉर्म और मैनर होगा इन द सेम मैनर दे नीड टू प्रिपेयर देयर CFS ऑल्सो. उसके बाद है फर्दर सेक्शन 129 सबसेक्शन 4 ऑफ द सेड एक्ट provides that the provision applicable to the preparation, adoption and audit of financial statement of a holding company shall mutatis mutandis, that means same, also apply to its consolidated financial statement. This simply means that the provision which kept in mind while preparing, adopting or auditing of the financial statement will be applicable same way as to the consolidated financial statement. उसके बाद है द CFS shall also be approved by the board of directors before they are signed on behalf of the board. सेम वे जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ बोर्ड साइन होने के पहले इट रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. तो सेम थिंग विल अप्लाई ऑन द CFS ऑल्सो अलॉन्ग विथ इट्स स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड शैल ऑल्सो बी लेड बिफोर द AGM. ये जो CFS होगा ये भी AGM के आगे पेश होगा यू कैन से. ओके अलॉन्ग विद द लेइंग ऑफ इट्स स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Further, the company shall also attach along with its financial statement a separate statement showing salient feature of the financial statement of its subsidiary in form AOC1. See here what we need to do that we along with our financial statement now we will attach form AOC. Okay और उस
AOC में क्या होगा, इट विल कंटेन द सेलियंट फीचर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इट्स सब्सिडरी। अपने सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ सेलियंट फीचर्स और वी कैन से द की पॉइंट विल गेट हाईलाइटेड इन फॉर्म AOC1 एंड दिस फॉर्म AOC1 इज रिक्वायर्ड टू बी अटैच्ड अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. Further, it says that according to the Companies Accounts Rule 2014, the consolidation of financial statement of the company shall be made in accordance with the provisions of Schedule 3 to the Act. ओके एंड द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. देखिए रूल्स क्या कहता है ना, दैट आपको दो चीज़ को फॉलो करना है कंसोलिडेट करते टाइम. एक तो प्रोविजन ऑफ शेड्यूल 3 टू द एक्ट और एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट मीन्स AS 21 एंड Ind AS 110. Further, however, a company which is not required to prepare consolidated financial statement under the accounting standard, it shall be sufficient if the company complies with provision of CFS provided in the Schedule 3. इसका मतलब क्या हुआ? सी एक बार फिर से पढ़ते, कहता है इफ़ अ कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में देर आर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड, ओके, दैट वी विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंपनी को अपना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं करना है, सो इन दैट केस इट शैल बी सफिशिएंट इफ द कंपनी कंप्लाइज विद प्रोविजन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइडेड इन शेड्यूल 3 ऑफ द एक्ट. ओके मीन्स आपको अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग CFS नहीं भी बनाना है ना, तो फिर आपके लिए ये सफिशिएंट होगा कि एटलीस्ट आप शेड्यूल 3 के प्रोविजन से कंप्लाई कर लो. ओके इन द नेक्स्ट पेज इट इज टेलिंग दैट हाउएवर द रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट शैल नॉट अप्लाई टू अ कंपनी इफ इट मीट्स द फॉलोइंग कंडीशन. ये 3 कंडीशन के मीट होने पे द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर देयर CFS. सी द फर्स्ट पॉइंट इज लाइक द कंपनी इज wholly owned subsidiary or partially owned subsidiary. ओके एंड ऑल इट्स मेंबर, उस कंपनी के सारे मेंबर ने राइटिंग में इंटीमेट किया है दैट वी डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन दैट द कंपनी इज़ नॉट प्रेजेंटिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके और उनके ये राइटिंग के इंटीमेशन का ना प्रूफ ऑफ डिलीवरी मिल जाना चाहिए, वो कंपनी के पास अवेलेबल होना चाहिए. ओके अब एक बार इसको पढ़ते हैं, 1 सेकेंड. हाँ, it is a wholly owned subsidiary or is a partially owned subsidiary of another company and all its other members including those not otherwise entitled to vote having been intimated in writing and for which the proof of delivery of such intimation is available with the company. ठीक है, इंटीमेट किए हो राइटिंग में और उसका प्रूफ हो. डू नॉट ऑब्जेक्ट टू द कंपनी नॉट प्रेजेंटिंग कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मतलब AGM में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट नहीं कर रहे, इस बात से मेंबर्स को कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है. तो इन दैट केस रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होगा. इसका पहला कंडीशन है ये. ओके फिर उसके बाद इट इज़ अ कंपनी हुज सिक्योरिटीज आर नॉट लिस्टेड और आर नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया एंड its ultimate or any intermediate holding company files consolidated financial statement with the registrar which are in compliance with applicable accounting standard. देखिए ये जो फर्स्ट वाला है ना अपना पॉइंट, ये पॉइंट कंप्लाई हो गया तो कंपनी इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS. ओके और फिर इस दोनों कंडीशन को साथ में देखना है. 1 सेकेंड. इस दोनों 2 and 3 को वी हैव टू सी ऑल टुगेदर. ओके सो पहला कहता है कि वो लिस्टेड नहीं होना चाहिए, ना ही वो प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में होना चाहिए टू एनी स्टॉक एक्सचेंज वेदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. एंड देन इट्स अल्टीमेट और एनी इंटरमीडिएट होल्डिंग कंपनी ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी फाइल कर दिया हो रजिस्ट्रार के पास. फाइन एंड दैट CFS वुड ऑब्वियसली बीइंग प्रिपेयर्ड in accordance with the applicable accounting standard. Now, as per subsection 6 of section 129, central government may on its own or an application by a class or classes of company by notification exempt any class or classes of company from complying with any of the requirement of section 129. बेसिकली कहने का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या तो खुद से या तो उन्हें अगर कोई एप्लीकेशन आए किसी क्लास और क्लासेस ऑफ कंपनी से, तो वो ये सेक्शन 129 की जो भी रिक्वायरमेंट है ना दैट आपको स्टैंडर्ड मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई करना है या कोई भी अदर रिक्वायरमेंट है रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उससे एग्जाम्प्ट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट. ओके इफ सच एग्जाम्पशन इज नेसेसरी इन पब्लिक इंटरेस्ट and any such exemption may be granted either unconditionally or subject to such conditions as may be specified in the notification. मीन्स ऐसा भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो 129 सेक्शन के रिक्वायरमेंट से एग्जेम्प्ट कर रही है तो वो अनकंडीशनली करे या तो सब्जेक्ट टू सच कंडीशन करे. मीन्स कुछ कंडीशन डाल दे दैट ये कंडीशन अगर कंप्लाई होता है देन यू डोंट नीड टू कंप्लाई विद द सच रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेक्शन 129. या तो वो अनकंडीशनली भी किसी एक क्लास को एग्जाम्पशन दे सकती है एंड दिस पावर इज प्रोवाइडेड इन सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 129. After this, thus the company having subsidiaries
the company having subsidiary which have previously never prepared the CFS must prepare their CFS in adherence with this mandatory requirement. So किसी कंपनी का अगर सब्सिडरी है और वो पहले कभी भी CFS नहीं बनाया है तो अब ये तो रिक्वायरमेंट मैंडेटरी है, राइट। जैसे हम लोगों ने सेक्शन 129 का प्रीवियस पेज में लैंग्वेज देखा, वहाँ साफ लिखा हुआ था दैट किसी भी कंपनी का अगर एक से ज़्यादा सब्सिडरी है इंक्लूडिंग एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर दे नीड टू प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलॉन्ग विद देयर स्टैंड अलोन, राइट। तो उनको प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद कहते हैं दिस विल प्रोवाइड द होल्डिंग कंपनी स्टेक होल्डर्स मोर ट्रांसपेरेंसी अबाउट द कंपनीज बिजनेसेस। सिंपल सी बात है ये, ओके। इसके बाद एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी नीड नॉट प्रेजेंट CFS if it is required in accordance with para 31 of Ind AS 110 to measure all of its subsidiary at fair value through profit or loss। सी क्या होता है ना कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी बेसिकली मीन्स प्रिंसिपल एक्टिविटी इज़ टू डू इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, ओके। तो जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी है उनको CFS नहीं बनाना है इफ़ Ind AS 110 आस्क देम टू मेजर ऑल ऑफ इट्स सब्सिडरी एट फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट और लॉस, राइट। सो पेरेंट एंटिटी को ये पता करना पड़ेगा कि क्या वो एक इन्वेस्टमेंट एंटिटी है। सो इन दैट केस ही विल measure all their subsidiary at fair value through profit and loss. He don't need to make a CFS, right। अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंटिटी का डेफिनेशन दिया हुआ है। इट मीन्स एन एंटिटी दैट ऑब्टेन फंड फ्रॉम वन और मोर इन्वेस्टर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग दोज इन्वेस्टर विथ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज, ओके। इट बेसिकली ऑब्टेन फंड एंड प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज। commits to its investor that the business purpose is to invest funds solely for the returns from the capital appreciation। मतलब एक कमिटमेंट रहता है इन्वेस्टमेंट एंटिटी को दैट ये जो हम लोग मीन्स हमारा बिजनेस पर्पस सिर्फ इतना है कि हम लोग फंड को इन्वेस्ट करेंगे और हमें रिटर्न्स मिलेगा फ्रॉम कैपिटल अप्रिसिएशन, ओके। या तो इन्वेस्टमेंट इनकम और बोथ। इन्वेस्टमेंट इनकम मीन्स हो गया डिविडेंड या इंटरेस्ट काइंड ऑफ थिंग, एंड कैपिटल अप्रिसिएशन मीन्स आई हैव इन्वेस्टेड 100 एंड इट बिकेम 120 आफ्टर सम टाइम, राइट। सो या तो कैपिटल अप्रिसिएशन से हमें रिटर्न मिलेगा या तो इन्वेस्टमेंट इनकम दैट इज डिविडेंड या इंटरेस्ट और बोथ। फर्दर मेजर्स एंड इवेलुएट्स द परफॉर्मेंस ऑफ सब्सिडरी ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस। ये जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी होती है उनको फेयर वैल्यू बेसिस पे मेजर करना पड़ता है अपने सारे परफॉर्मेंस ऑफ द सब्सटेंशियली ऑल ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, सॉरी इट इज़ नॉट सब्सिडरी, फाइन। मीन्स अपने सारे इन्वेस्टमेंट को ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस इट just evaluate their performance. And this requirement of measuring and evaluating the performance of the investment on fair value basis is coming from the Ind AS 110, okay. Further it is telling that as per para 33 of Ind AS 110, parent of an investment entity shall consolidate all entities that it controls including those controlled through an investment entity subsidiary unless the parent itself is an investment entity। सी यहाँ पे जो बोला गया था ना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एंटिटी का बात किया गया था कि इन्वेस्टमेंट एंटिटी को नहीं प्रेजेंट करना है CFS, बट यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पेरेंट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल कंसोलिडेट ऑल द एंटिटीज दैट इट कंट्रोल्स। मीन्स इन्वेस्टमेंट एंटिटी के जो पेरेंट होंगे ना इट विल कंसोलिडेट ऑल द एंटिटीज दैट इट कंट्रोल्स, ओके, इंक्लूडिंग अब इसमें वो भी एंटिटी आएंगे जो कि कंट्रोल्ड बाय द इन्वेस्टमेंट एंटिटी सब्सिडरी। दिस मीन्स इन्वेस्टमेंट एंटिटी का जो पेरेंट है वो इन्वेस्टमेंट एंटिटी को तो कंसोलिडेट कर ही रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एंटिटी जिस सब्सिडरी को कंट्रोल कर रही है ना उसे भी अपने में कंसोलिडेट कर रहे हैं, राइट। फर्दर अनलेस द पेरेंट इटसेल्फ इज एन इन्वेस्टमेंट एंटिटी, मतलब ये जो पेरेंट थे ना ये खुद इन्वेस्टमेंट एंटिटी नहीं होने चाहिए। देखिए ये अगर इन्वेस्टमेंट एंटिटी हो जाएंगे तब तो यहाँ वाली रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करना होगा ना, दैट यू नीड टू मेजर ऑल योर सब्सिडरी एट फेयर वैल्यू, ओके। सो पेरेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंटिटी शैल कंसोलिडेट ऑल द एंटिटीज दैट इट कंट्रोल्स। और जो इन्वेस्टमेंट एंटिटी होंगे दे नीड टू कंप्लाई विद द पैरा 31 ऑफ Ind AS 110। Move to the next page, and here one case study is given, and this case is basically based on consideration of financial statement for consolidation, fine। The provisions and explanations are given here, and also the conclusion are stated, okay। Just go through this case, आपको आ जाएगा समझ में properly, okay। For now I am moving to the next page where it is given the responsibility of parent, fine। मीन जो होल्डिंग कंपनी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। See, the responsibility for the preparation and presentation of CFS among other things is that of management of the parent। होल्डिंग कंपनी की मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द CFS। फर्दर दिस इंक्लूड्स identifying components and including the financial information of the component to be included in the CFS। components basically means subsidiary, associates and joint venture। तो सबसे पहले तो पेरेंट के मैनेजमेंट को ये आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कंपोनेंट्स कौन कौन है, कितने एसोसिएट कंपनी है, कितने जॉइंट वेंचर्स है, तभी तो हम लोग इंक्लूड करेंगे उसके फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को अपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, राइट।
Also, where appropriate, identifying reportable segment for segmental reporting. The management also need to identify the reportable segment for the purpose of segmental reporting. ओल्ड एज 17 में सेगमेंटल रिपोर्टिंग के रिगार्डिंग प्रोविजंस है. फिर आइडेंटिफाइंग रिलेटेड पार्टीज एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन फॉर रिपोर्टिंग, ऑब्टेनिंग एक्यूरेट एंड कंप्लीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कॉम्पोनेंट. देखिए कॉम्पोनेंट्स मीन्स क्या हुआ, जॉइंट वेंचर, सब्सिडियरी एंड एसोसिएट. तो उससे कंप्लीट और एक्यूरेट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करेंगे. मेकिंग अप्रोप्रिएट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट. कंसोलिडेशन करते टाइम कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, लाइक परमानेंट एडजस्टमेंट एंड टेम्प्रोरी एडजस्टमेंट. ऑल दिस नीड टू बी कैरिड आउट बाय द management of parent. Fine. Harmonization of accounting policies and accounting framework, gap conversion where applicable. This harmonization of accounting policy एक्चुअली क्या होता है ना कि कभी पेरेंट कंपनी का जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये कोई और पॉलिसी फॉलो कर रहा है, और जो सब्सिडरी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने इट इज़ फॉलोइंग सम अनदर पॉलिसी. ओके, सो बिफोर कंसोलिडेशन वी नीड टू हार्मोनाइज द अकाउंटिंग पॉलिसी एज वेल एज अकाउंटिंग फ्रेमवर्क ऑफ बोथ. तभी हम लोग कंसोलिडेट कर पाएंगे. एंड वी हैव ऑल्सो सीन दैट हम लोग को टू द एक्सटेंट पॉसिबल जो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसके फॉर्मेट में ही बनाना चाहिए CFS. ओके, और ये गैप कन्वर्सन है. इट इज़ ऑल्सो द सेम थिंग, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल. कुछ अगर इसके बेसिस पे डिफरेंस है तो वी नीड टू कन्वर्ट. Further, apart from above, the parent ordinarily issues instruction to the management of the component specifying the parent's requirement. मतलब पेरेंट्स की जो रिक्वायरमेंट होगी ना ये इशू करेंगे इंस्ट्रक्शन टू द मैनेजमेंट ऑफ कंपोनेंट, राइट, रिलेटिंग टू फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट टू बी इंक्लूडेड इन द CFS. और वो किसके रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शन देंगे, रिगार्डिंग द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन. ऑब्वियसली मैं पेरेंट कंपनी हूँ एंड आई नीड टू कंसोलिडेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपोनेंट, सो आई विल आस्क फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ कंपोनेंट अबाउट द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ देम. ठीक है. फिर आता द इंस्ट्रक्शन ऑर्डिनरली कवर द अकाउंटिंग पॉलिसीज टू बी अप्लाइड, स्टैट्यूटरी एंड अदर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल टू द पेरेंट, इंक्लूडिंग द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंड रिपोर्टिंग ऑन द रिपोर्टेबल सेगमेंट एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन इन द रिपोर्टिंग टाइम टेबल. बेसिकली आप अगर देखो तो जो ये मैनेजमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना उसके रिगार्डिंग ही ऑल द थिंग्स द मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी हैव आस्क्ड टू द मैनेजमेंट ऑफ कंपोनेंट, राइट, बिकॉज ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करना है इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन कंपोनेंट का है वो कंपोनेंट के मैनेजमेंट देंगे. ओके, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग फ्रॉम देम. फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑडिटर ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हम लोग से रिलेटेड बात, दैट वी आर डूइंग द ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देन व्हाट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. The same provision is written here of section 129 subsection 4, that provision of act applicable to preparation, adoption and audit of financial statement will same apply to the consolidated financial statement also. Okay, further it is telling that other matters means beside other matter हम लोगों को क्या और opinion देना है. The principal auditor of consolidated financial statement is responsible for explaining an opinion on whether the consolidated financial statement are prepared in all material respect in accordance with the financial reporting framework अंडर विच द पेरेंट प्रिपेयर्स द. यहाँ पे स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए, क्योंकि देखिए हम लोग को क्या इंश्योर करना है दैट जो पेरेंट्स अपना स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए उसमें जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क यूज़ हुआ है सेम शुड बी यूज इन द कंसोलिडेटेड, राइट. तो हम लोग को क्या ओपिनियन देना है, एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन वेदर द CFS आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द FRF, दैट मीन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, under which the parent prepares the standalone financial statement. Okay, I think it is misprint on ICI part. In addition to reporting on the additional matter as required under Companies Act 13. Means Companies Act 13 में जो additional matters दिए हुए हैं section 143 में भी है कुछ requirement for the purpose of reporting. उसके अलावा हमें ये opinion देना है that whether the consolidated financial statement has been prepared in all material respect in accordance with financial reporting framework under which the parent prepares their financial statement or standalone financial statement. उसके बाद है देयरफॉर द ऑडिटर्स ऑब्जेक्टिव इन एन ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव क्या है इन ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल ही नीड टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द CFS हैव बीन प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है उसके अकॉर्डिंग ही CFS बना है. और वो कौन सा फ्रेमवर्क होगा, सेम फ्रेमवर्क दैट हैज़ बीन यूज्ड इन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. उसके बाद टू इनेबल हिमसेल्फ टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंटेड बाय द CFS में ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट किया गया है नहीं. टू इंक्वायर इनटू द मैटर्स एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 143(1) जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है अंडर कंपनीज एक्ट इन दिस सेक्शन. ओके, टू रिपोर्ट ऑन द मैटर्स गिवन इन द क्लॉज A to I ऑफ सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 फॉर अदर्स मैटर अंडर
this section and with rule number 11 of company rule to comment on the matter specified in this rule to the extent applicable. Means इन सारे rule पे report करना है. The auditor should also validate the requirement of preparation of CFS for the company as per applicable financial reporting framework. This means the auditor will also check that company को CFS prepare करने की requirement भी थी या नहीं. Okay. फिर उसके बाद है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग स्टेटमेंट्स एंड गाइडेंस. नोट ऑन ऑडिटिंग मैटर्स इशूड बाय ICAI अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑडिट ऑफ CFS एज दे अप्लाई टू ऑडिट ऑफ स्टैंडर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. मीन्स ये ऑडिटिंग के लिए जो भी ऐसे इशू हुआ है ना, जो हम लोग का ऐसे है प्लस स्टेटमेंट या गाइडेंस नोट है ऑन ऑडिटिंग, इट विल अप्लाई same on CFS as it apply on the standalone financial statement. It means that the auditors while conducting the audit of CFS are expected to see. उनको प्लान करना है देयर वर्क टू एनेबल देम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट इन एन एफिशिएंट एंड टाइमली मैनर. हम लोग जनरली ऑडिट में भी देखते हैं ऐसे 300 है प्लानिंग पे दैट द ऑडिटर नीड टू प्लान देयर वर्क टू इनेबल देम टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट. ओके, दैट हमारा ऑडिट अच्छे से हो. उसके बाद ऑब्टेन करना है अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंक्लूडिंग IT सिस्टम लाइक कंसोलिडेशन. मीन्स बिजनेस कैसा है, कंपनी का इंटरनल कंट्रोल कैसा है, सफिशिएंट टू प्लान द ऑडिट एंड डिटरमाइन द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ हिज ऑडिट प्रोसीजर. सी ये अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने से ना, ये अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करने से द ऑडिटर इज एबल टू प्लान द ऑडिट फाइन एंड डिटरमाइन द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ हिज ऑडिट प्रोसीजर. ऐसे 315 में ये बात काफ़ी डिटेल में की गई है. ओके, सच एन अंडरस्टैंडिंग वुड हेल्प द ऑडिटर टू डेवलप एन इफेक्टिव ऑडिट अप्रोच. सेम थिंग. ओके, use professional judgment to assess audit risk and to design audit procedures to ensure that the risk is reduced to an acceptably low level. Basically हम अगर देखें ना तो ये जो 3 पॉइंट थे, it is nothing but ये ऐसे 300 की रिक्वायरमेंट है. ओके, ये ऐसे 315 की रिक्वायरमेंट है and it is written in the ऐसे 200 that the auditor need to exercise professional judgment to assess audit risk and design audit procedure to ensure that risk is reduced to an acceptably low level. बिल्कुल सिंपल ऐसे का है कॉन्सेप्ट. ओके, एंड सेम कॉन्सेप्ट वी हैव टू अप्लाई ऑन द ऑडिट ऑफ CFS ऑल्सो. फॉलोइंग फीचर्स ऑफ CFS हैव एन इम्पैक्ट ऑन द रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर्स. दिस मीन्स आवर ऑडिटिंग प्रोसीजर्स while carrying out the audit of CFS, okay, is get affected by some features of the CFS. okay, ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कुछ फीचर्स होता है जिसके कारण हमारे ऑडिट प्रोसीजर पे इम्पैक्ट पड़ता है. लेट्स सी, कहता है कि ये CFS जो प्रिपेयर होता है ना, इट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट यूजिंग द कंसोलिडेशन प्रोसीजर्स प्रिस्क्राइब्ड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. हम लोग कंसोलिडेशन करते कैसे, द प्रोसेस इज प्रिस्क्राइब्ड इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अंडर द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. तो ये जो हम लोग का जो प्रिपेयर का CFS को प्रिपेयर करने का जो तरीका है ना, दैट इसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग, पेरेंट कंपनी का और कंपोनेंट का अलग, एंड वी कंसोलिडेट बोथ ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट basis the procedures prescribed under the accounting standard. So it is one of the features that affect our audit procedure. And then auditor of the CFS may use the work of other auditor. Auditor of CFS may use the work of other auditor as per the requirement of SA unless the auditor of CFS is also the auditor of other component of the group. This means जो CFS के auditor है ना, वो other auditors के help ले सकते हैं. Okay, as per the requirement of standard on auditing. But हाँ, एक केस में वो नहीं ले सकते अगर जो CFS के ऑडिटर है ही इज़ ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द ग्रुप. दैट मीन्स सब्सिडरी और अगर मीन्स अगर एसोसिएट और होल्डिंग के अगर सेम ऑडिटर हुए ना, सो इन दैट केस ही कांट टेक द हेल्प. नाउ द नेक्स्ट पैरा इज टेलिंग दैट द CFS आर प्रिपेयर्ड यूजिंग द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट एंड ऑल्सो अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, ओके, विच माइट नॉट बी कवर्ड बाय द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ दिस एंटिटी. कहने का मतलब है कि ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनता है ना, तो उसके बाद उसमें कुछ अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी आते हैं. अब ये अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इंक्लूड डिस्क्लोजर टू बी मेड इन द CFS अबाउट द कंपोनेंट, प्रोपोर्शन ऑफ आइटम इंक्लूडेड इन द CFS टू विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी हैव बीन अप्लाइड वे permitted, adjustment made for the effect of significant transaction or other event that occur between the financial statement of parent and its component. Thus this other financial information will be required to be additionally डिस्क्लोज. देखिए बेसिकली आप अगर ये अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का अगर आप कंटेंट देखोगे ना, तो ये कंसोलिडेशन से रिलेटेड जो भी एडिशनल डिस्क्लोजर है वो यहाँ पे दिया हुआ है. जैसे कि सॉरी कि क्या आपको डिस्क्लोज करना है इन CFS अबाउट द कंपोनेंट, राइट, प्रोपोर्शन है ऑफ आइटम्स इंक्लूडेड इन द CFS टू विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी हैव बीन अप्लाइड. देखिए वैसे तो पेरेंट का और कंपोनेंट दोनों का अकाउंटिंग पॉलिसी सेम होना चाहिए, बट कभी किसी अनफोर्सिन सर्कमस्टांस में ऐसा होता है दैट कुछ एरिया में अकाउंटिंग पॉलिसी डिफरेंट है, तो वो एरिया आपको इंडिकेट करना है अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में.
उसके अलावा एडजस्टमेंट आपने जो किसी सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन का किया हो दैट ऑल्सो यू नीड टू डिस्क्लोज, ठीक है। तो ये जो अदर फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है इट बी रिक्वायर्ड टू बी एडिशनली डिस्क्लोज। नाउ व्हेन ऑडिटर एक्सेप्ट द ऑडिट ऑफ सीएफएस, ना जब आप एक्सेप्ट करते हो कि मैं ठीक है मैं सीएफएस का ऑडिट करूंगा, तो ऑडिटर शुड असेस वेदर बेस्ड ऑन हिज वर्क अलोन ही वुड बी एबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंटेड बाय द सीएफएस। दिस मीन्स कि एक सेकेंड कि ऑडिटर जब भी ऑडिट लेते हैं ना सीएफएस का, व्हेन एक्सेप्ट द ऑडिट ऑफ सीएफएस, तो ऑडिटर को ये चेक करना है, असेस करना है कि क्या वो वेदर ही वुड बी एबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन वर्क अलोन, ओके, वो मीन्स अकेले काम करके ओपिनियन एक्सप्रेस कर पाएंगे कि नहीं ऑन द सीएफएस। इफ़ द ऑडिटर इज ऑफ व्यू दैट हिज ओन पार्टिसिपेशन मे नॉट बी इनफ, मीन्स उनसे अगर अकेले नहीं हो पाएगा, काफ़ी बल्कि वर्क है, तो ही शुड कंसिडर यूजिंग द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर्स। फाइन। अब कहता है सच अदर ऑडिटर्स, उसके बारे में बताया गया है कि सच अदर ऑडिटर्स माइट बी द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर ऑफ द कंपोनेंट और द ऑडिटर अपॉइंटेड स्पेसिफिकली फॉर असिस्टिंग द ऑडिटर ऑफ सीएफएस। मीन्स ये जो अदर ऑडिटर्स की बात की है ना कि अगर वो अकेले मीन्स इफ दे आर नॉट capable alone, in that case he will take the help of other auditor, and that other auditor might be the statutory auditor of the separate financial statement of one or more of the component, means किसी सब्सिडरी के सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हो सकते हैं, या फिर कोई एडिशनली ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा स्पेसिफिकली फॉर द पर्पस ऑफ असिस्टिंग द ऑडिटर ऑफ सीएफएस। लाइक सपोज मैं एक ऑडिटर हूँ सीएफएस का एंड आई एम व्हाट आई फिगर्ड आउट दैट आई एम नॉट एबल टू डू दिस ऑडिट अलोन, तो मैं अदर ऑडिटर का हेल्प लूँगा। अब वो जो अदर ऑडिटर होंगे वो कोई ऐसे भी ऑडिटर हो सकते हैं जिसे स्पेसिफिकली एम्प्लॉय किया है फॉर द पर्पस ऑफ हेल्पिंग मी, या तो वो किसी कंपोनेंट के मतलब किसी सब्सिडरी या किसी एसोसिएट के स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी हो सकते हैं, ओके, एज अ अदर ऑडिटर। फर्दर वेयर द स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ वन और मोर कंपोनेंट of the parent are also requested to assist the principal auditor. The work to be performed by such auditors for use by the principal auditor would constitute an assignment separate from the assignment to conduct the statutory audit of respective component. See, यहाँ पे जो CFS का ऑडिटर है ना उसे हम लोग कह रहे हैं प्रिंसिपल ऑडिटर, ओके, और स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट, राइट। सो दिस पैरा इज टेलिंग दैट अगर कंपोनेंट के स्टैट्यूटरी ऑडिटर को रिक्वेस्ट किया गया दैट यू जस्ट असिस्ट द प्रिंसिपल ऑडिटर, फाइन, तो ये जो काम करेंगे ना स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ द कंपोनेंट दैट वुड कंस्टिट्यूट एन असाइनमेंट सेपरेट फ्रॉम द असाइनमेंट टू कंडक्ट द स्टैट्यूटरी ऑडिट ऑफ द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट। मीन्स वो लोग जो कंपोनेंट का, वो लोग जो अपने कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर रहे थे ना उस असाइनमेंट से सेपरेट माना जाएगा ये वाले असाइनमेंट को, मीन्स वेयर दे आर हेल्पिंग द प्रिंसिपल ऑडिटर, राइट। उसके बाद एक ऐसे का रेफरेंस दिया हुआ है ऐसे 600 विच डिफाइंस यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर, एंड दिस ऐसे डील्स विद द केस व्हेन एन ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एन एंटिटी और द ग्रुप, इन केस ऑफ सीएफएस वी कॉल ग्रुप, ओके। सिंगल का अगर होगा तो कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी, और अगर सीएफएस का बात होगा तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप, ठीक है। So, when an auditor reporting on the financial statement of an entity uses the work of another auditor on the financial information of one or more component included in the financial statement of the entity, right? Means जब एक ऑडिटर यूजेज द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर ऑन द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ वन और मोर कंपोनेंट, ओके, इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एंटिटी, मीन्स जब एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2-3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपोनेंट का इंक्लूडेड है, ओके, मीन्स मोर देन वन कंपोनेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडेड है, उस केस में अगर जो ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ग्रुप, ओके, इफ दैट ऑडिटर इज टेकिंग हेल्प ऑफ द अनदर ऑडिटर, सो दिस ऐसे विल गेट एप्लीकेबल। See, the principal auditor, if he decide to use the work of another auditor, principal auditor means parent company के auditor, okay, तो अगर वो डिसाइड करते हैं दैट आई हैव टू यूज़ द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर इन रिलेशन टू द ऑडिट ऑफ सीएफएस, तो शुड कंप्लाई विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऐसे 600। ऐसे 600 में जो रिक्वायरमेंट दिया हुआ है इस रिगार्डिंग दैट व्हेन अ प्रिंसिपल ऑडिटर डिसाइड टू टेक द हेल्प ऑफ अनदर ऑडिटर, ओके, इससे प्रिंसिपल ऑडिटर को कंप्लाई करना पड़ेगा। इन कैरिंग आउट द ऑडिट ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, द कंप्यूटेशन ऑफ materiality for the purpose of issuing an opinion on the standalone financial statement of each component would be done component wise on a standalone basis. This para is talking from component point of view. It is telling that जब materiality का computation हो रहा है for standalone financial statement of the component, देखिए component जो सब्सिडरी है उसकी भी standalone बनेगी और फिर उसके अकाउंट मीन्स उसके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो अपने पेरेंट के
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंसोलिडेट होंगे। ओके, तो यहाँ पे कंपोनेंट के स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बात हो रहा है कि जब कंपोनेंट का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा तो उस केस में कंप्यूटेशन ऑफ जो मेटेरियलिटी होगी ना वो कंपोनेंट वाइज होगी और स्टैंड अलोन बेसिस होगी। उस समय वी विल नॉट कंसिडर दैट हमारा कंसोलिडेशन होने वाला है पेरेंट के साथ एंड ऑल। ओके, हम लोग कंपोनेंट वाइज एंड सेपरेटली मेटेरियलिटी कंप्यूट करेंगे। ओके, however with regard to determination of materiality during the audit of CFS the auditor should consider the following। देखिए, जब अकेले अकेले डिटरमाइन किया जा रहा था तो हम लोग सेपरेटली देखेंगे, बट व्हेन वी आर डिटरमाइनिंग द मेटेरियलिटी ड्यूरिंग द ऑडिट ऑफ CFS तो ऑडिटर को इन सब बातों का ध्यान रखना है। सी द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द मेटेरियलिटी फॉर द ग्रुप एज अ होल, मीन्स पूरे ग्रुप को ध्यान में रखते हुए, दैट इज अपना पेरेंट एंटिटी, सारे सब्सिडरी एंड एसोसिएट जो कि कंसोलिडेट होने वाले इंटायरली एज अ ग्रुप, द ऑडिटर नीड टू कंप्यूट द materiality. This materiality should be used to assess the appropriateness of the consolidation adjustment, that is permanent and current period adjustment that are made by management in the preparation of CFS। मीन्स आप एक बार जब मेटेरियलिटी का कंप्यूटेशन कर लेते हैं सो उसके बेसिस पे ऑडिटर विल असेस दैट हाउ द मीन्स वेदर द कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट इज अप्रोप्रिएट और नॉट। फाइन, उसके बाद पेरेंट ऑडिटर कैन ऑल्सो यूज द मेटेरियलिटी कंप्यूटेड ऑन द ग्रुप लेवल to determine whether the component financial statement are material to the group, to determine whether they should scope in additional component and consider using the work of other auditors as applicable। This simply means that एक बार जब ग्रुप लेवल पे हमें मेटेरियलिटी पता चल जाएगा सो आफ्टर दैट वी कैन डिटरमाइन दैट कौन सा हमारा कॉम्पोनेंट है जो कि मेटेरियल है और कौन नहीं है। ओके, फिर द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑल्सो कंप्यूट मेटेरियलिटी फॉर ईच कॉम्पोनेंट एंड कम्युनिकेट टू द कॉम्पोनेंट ऑडिटर इफ़ ही बिलीव्स इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑन CFS। मतलब आप एक बार ग्रुप लेवल पे भी पता कीजिए और एक बार मेटेरियलिटी ईच कंपोनेंट का भी पता कीजिए एंड कम्युनिकेट टू द कंपोनेंट ऑडिटर। द प्रिंसिपल ऑडिटर ऑल्सो ऑब्टेन सर्टेन कंफर्मेशन फ्रॉम कंपोनेंट ऑडिटर लाइक इंडिपेंडेंस, कोड ऑफ एथिक्स, सर्टेन इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर कंसल्टेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। जो पेरेंट जो CFS का ऑडिट कर रहा होगा ना प्रिंसिपल ऑडिटर, वो कंपोनेंट ऑडिटर से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इफ ही रिक्वायर्ड देन ही कैन कॉल फ्रॉम हिम। However, while considering the observation of the component auditor in his report on the standalone financial statement, the concept of materiality would not be considered। This means component के अगर ऑडिट रिपोर्ट में मीन्स स्टैंड अलोन ऑडिट रिपोर्ट में अगर कुछ ऑब्जर्वेशन उसके ऑडिटर ने डाला है, ओके, और आप उसे कंसिडर कर रहे हो, सी while considering the observation of the component auditor in his report on the standalone फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उस टाइम आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मेटेरियलिटी कंसिडर नहीं करना है बिकॉज यू हैव कंसिडर्ड द मेटेरियलिटी ऑन अ ग्रुप एज अ होल। ओके, एंड हियर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। उसके बाद कहता है दस द कंपोनेंट ऑडिटर की जो ऑब्जर्वेशन है ऑन द कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट irrespective of whether the auditor of component are also the auditor of CFS or not are required to be included in the parent auditor report on the CFS regardless of materiality। मतलब कंपोनेंट ऑडिटर की जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ना वो आपको इंक्लूड करना पड़ेगा पेरेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट के CFS में रिगार्डलेस ऑफ मेटेरियलिटी। दिस मीन्स CFS के ऑडिट रिपोर्ट में डबल हो गया, एक तो एज अ ग्रुप ऑब्जर्वेशन रहेगा प्लस वॉट एवर कॉम्पोनेंट ऑडिटर्स का ऑब्जर्वेशन रहा है दैट वुड बी इंक्लूडेड इन द पेरेंट्स ऑडिट रिपोर्ट ऑन द CFS। फाइन, फिर ऑडिटिंग द कंसोलिडेशन, ये जो कंसोलिडेशन हो रहा है हाउ वी विल ऑडिट दैट। Before commencing an audit of CFS, the auditor should plan his work to enable him to conduct an effective audit in an efficient and timely manner। ये तो सबको पता है। Okay, the auditor should make plan among other things for the following। See, planning points यहाँ पे दिया हुआ है that how you have to plan the audit of CFS। See, understanding of the group structure, group-wide controls including assessment of IT system and related general and applications IT related controls। बेसिकली क्या कह रहा है दैट ग्रुप स्ट्रक्चर समझना है। ग्रुप स्ट्रक्चर मीन्स जितने भी सब्सिडरीज है इंक्लूडिंग पेरेंट कंपनी एंड ऑल, सबका कंसोलिडेटेड स्ट्रक्चर समझना है, कंट्रोल समझना है, ओके, एंड असेसमेंट ऑफ IT सिस्टम करना है दैट हाउ द एप्लीकेशंस एंड ऑल आर वर्किंग इन द ग्रुप। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज ऑफ द पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट एज वेल एज ऑफ द कंसोलिडेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फॉरेन कंपोनेंट। सी, अकाउंटिंग पॉलिसीज वी हैव टू अंडरस्टैंड of the parent as well as component because अगर कोई अकाउंटिंग पॉलिसी में अगर डिफरेंस है सो इन दैट केस वी नीड टू जस्ट ब्रिंग द बोथ इन द सेम लाइन। ओके, तो वो मीन्स कुछ कन्वर्सन काइंड ऑफ थिंग करना पड़ता है प्लस हमें कंसोलिडेशन का प्रोसेस भी समझना है दैट हाउ द कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज़ बीन कैरिड आउट बाय द मैनेजमेंट।
फर्दर अगर कोई कंपोनेंट ऐसे है जो कि फॉरेन में है तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ट्रांसलेट करना पड़ता है इन द इंडियन करेंसी, राइट। तो इन सब प्रोसेस का हम लोगों को अंडरस्टैंडिंग लेना है। डिटरमाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट इन कंसोलिडेशन प्रोसेस। देखिए, जब ये दोनों हम लोग अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे ए एंड बी, ओके, उसके बाद वी विल डिज़ाइन द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ आवर ऑडिट प्रोसीजर, दैट हाउ वी हैव टू प्रोसीड द ऑडिट, and first to be based on the assessment of risk of material misstatement in consolidation process. We will also assess the risk of material misstatement in the consolidation process, okay, basis our understanding which we have obtained here. यहाँ पे हम लोग इसका अंडरस्टैंडिंग लिए थे ना कंसोलिडेशन प्रोसेस का। फिर डी कहता है कि डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ यूज ऑफ द अदर ऑडिटर वर्क इन द ऑडिट। हम लोग अपने प्लानिंग पॉइंट में ये भी कंसिडर करेंगे दैट अदर ऑडिटर्स का वर्क की कितनी रिक्वायरमेंट है, प्लस कोऑर्डिनेटिंग द वर्क टू बी परफॉर्म्ड। फिर प्लानिंग में जितना भी वर्क आउटलाइन होगा वी हैव टू कोऑर्डिनेट ऑल दोज वर्क दैट सारा काम प्रॉपरली हो। So these were the planning points for auditor. I want to repeat. The first one was the understanding of the group structure, group-wide controls, and the assessment of IT system. Then you have to obtain the understanding of accounting policies of the parent as well as component, and also the consolidation process. Then you have to determine the nature, timing, and extent of the audit procedure based on your assessment of the risk of material misstatement. You also have to determine that to what extent you need the help of other auditors' work. And then finally you have to coordinate all the work to be performed. See, a parent which present consolidated financial statement is required to consolidate all its component in the CFS, other than those for which exceptions have been provided in the relevant accounting standard under the applicable financial reporting framework. See, किसी सब्सिडरी के लिए अगर एक्सेप्शन प्रोवाइड किया होगा ना दैट दिस सब्सिडरी शुड नॉट गेट कंसोलिडेटेड एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ओके, हम लोग को स्ट्रिक्टली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना है, सो उसका कंसोलिडेशन नहीं होगा इन द CFS. फिर कहता है द ऑडिटर शुड ऑब्टेन अ लिस्टिंग ऑफ ऑल द कंपोनेंट इंक्लूडेड इन द CFS and review the information provided by management of the parent identifying the component. Now it's the auditor part. ऑडिटर को क्या करना है, पहले CFS में देखना है दैट हाउ मेनी कंपोनेंट्स हैज़ बीन इंक्लूडिंग, ओके, और उसका लिस्टिंग ऑब्टेन करना है, मीन्स यू कैन से द लिस्ट ऑफ कंपोनेंट इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड आफ्टर दैट द ऑडिटर विल चेक, द ऑडिटर विल रिव्यू द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मैनेजमेंट ऑफ द पेरेंट आइडेंटिफाइंग द कंपोनेंट। इफ़ यू रिमेंबर हम लोगों ने देखा था कि पेरेंट के जो मैनेजमेंट होते हैं उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है टू आइडेंटिफाई ऑल द कंपोनेंट, ओके। तो जो मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया था ऑल द कंपोनेंट, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन जब वो ऑडिटर को देंगे ना, तो ऑडिटर विल मैच दैट इन्फॉर्मेशन विद द लिस्टिंग ऑफ कंपोनेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब एक्चुअली कितने का कंसोलिडेशन हुआ है और मैनेजमेंट ने कितना कंपोनेंट आइडेंटिफाई किया था, दिस द ऑडिटर इज मैचिंग हियर। उसके बाद है द ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट ऑल कंपोनेंट हैव बीन इंक्लूडेड in the CFS unless this component meet criteria for exclusion. सेम बात है, वो दोनों लिस्ट को मैच करके द ऑडिटर इज ट्राइंग टू वेरीफाई दैट सारे कंपोनेंट को इंक्लूड कर लिया गया है CFS में until and unless it comes into exclusion, मतलब यहाँ वाला पॉइंट, ओके, कि अगर AS में ऐसा कुछ एक्सेप्शन है तो सॉरी। फर्दर इन रिस्पेक्ट ऑफ कंप्लीटनेस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन द ऑडिटर शुड परफॉर्म द फॉलोइंग प्रोसीजर। ये जो इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट ने दिया है रिगार्डिंग नंबर ऑफ कंपोनेंट, ओके, तो इसको चेक करने के लिए व्हाट ऑडिटर विल डू, रिव्यू हिज वर्किंग पेपर फॉर द प्रायर ईयर्स फॉर द नोन कंपोनेंट। पिछले साल का अगर ऑडिटर ने ऑडिट किया होगा तो वो वर्किंग पेपर ऑडिटर विल चेक, राइट, एंड मीन्स मेनली ही विल चेक अबाउट द नोन कंपोनेंट, बिकॉज पिछले ईयर भी तो वो सारे कंपोनेंट होंगे, तो उसमें किसी भी तरह का अगर चेंज हुआ होगा तो इट विल कम इन टू द आइज ऑफ ऑडिटर। Review the parent's procedure for identification of various components. The auditor will see that how the parent's management is identifying the component. उनका process क्या है? Make inquiries of the management to identify any new component or any component which goes out of the consolidated financial statement. The auditor will adopt the inquiry process, okay, to know that if there is any new component or any component that have been gone out of the CFS. Fine. The auditor will also review the investment of parent as well as its component to determine the shareholding in other entities, because अगर हाफ से क्रॉस होता है या एसोसिएट कंपनी के केस में 20 से शेयर होल्डिंग क्रॉस होता है तो वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, ओके। सो फॉर द पर्पस ऑफ दैट द ऑडिटर विल चेक, मीन्स रिव्यू द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। अदर देन दिस रिव्यू द जॉइंट वेंचर, जॉइंट arrangement as applicable and any other arrangement entered into by the parent that have not been included in the CFS
The auditor will also review the statutory records maintained by the parent. For example, registers under section 186 pertain to investment and all. Okay, identify the changes in the shareholding that might have taken place during the reporting period. Reporting period में investment में कितना changes आया है, that will also be reviewed by the auditor. Okay. उसके बाद है द ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म फॉर असेसिंग कंप्लीटनेस ऑफ द कंपोनेंट्स टू बी कंसोलिडेटेड. ये जो असेस किया ना ऑडिटर ने, क्या कंप्लीटनेस ऑफ द कंपोनेंट टू बी कंसोलिडेटेड, इसके प्रोसीजर्स को डॉक्यूमेंट करेगा. मतलब द ऑडिटर विल रिकॉर्ड द प्रोसेस परफॉर्म बाय ऑडिटर इन ऑर्डर टू असेस द कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट टू बी कंसोलिडेटेड, सो दैट वो रिकॉर्डिंग में रहे. मतलब कि जितना भी चेकिंग ऑडिटर ने किया है टू इंश्योर दैट ये जितने भी कंपोनेंट इंक्लूडेड है करेक्ट है, राइट. तो उस प्रोसेस को द ऑडिटर शुड डॉक्यूमेंट, मीन्स वो रिकॉर्ड कर लेंगे. आफ्टर दैट देयर वुड बी वेरियस मीन्स बाय विच कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्टेन्ड. In this regard, the auditor may verify the board's minute, shareholder agreement entered into by the parent, agreement with the entities to which the parent might have provided any technology or know-how, enforcement of statute as the case may be, etc. For the purpose of being subsidiary, इतना काफ़ी होता है that any another company is exercising control over you. Okay, if they control the composition of your board of director, तो still उसमें holding subsidiary की relation बन जाती है. Okay. तो यहाँ पे कह रहा है कि बहुत मतलब देयर वुड बी वेरियस मीन्स बाय विच कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस कैन बी ऑब्टेन्ड. ओके, तो इन दिस रिगार्ड ऑडिटर को चेक करना है बोर्ड्स मिनट, शेयर होल्डर agreement entered into by the parent, agreement with the entities to which parent might have provided any technology or know-how और इन्फोर्समेंट ऑफ स्टैच्यू. ओके, तो किसी भी तरह का कोई मेजर अग्रीमेंट अगर पेरेंट ने इंटर किया है तो द ऑडिटर विल चेक दैम, सो डैट कि किसी के साथ ऐसा केस नहीं होना चाहिए दैट किसी कंपनी पे द पेरेंट इज एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, राइट. क्योंकि अगर ऐसा हो रहा होगा तो वो सब्सिडी, तो वो होल्डिंग सब्सिडी के रिलेशन में आ जाएंगे और कंसोलिडेशन के प्रोविजन को कंप्लाई करना होगा. फर्दर द ऑडिटर में ऑल्सो रिव्यू द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सब्सिक्वेंट टू द ईयर एंड to understand if there has been any liquidation of investment or any further investment have been made, as in they provide further evidence to understand if the control was meant to be temporary in nature or otherwise. देखिए क्या होता है कि आप अगर किसी कंपनी में मान लीजिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए या आप मीन्स वो बिल्कुल टेम्प्रेरी नेचर का इन्वेस्टमेंट था, ये पता करने के लिए द ऑडिटर विल चेक द मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड of director subsequent to the year end to understand if there has been liquidation of investment or any further investment have been made, so that it provides the further evidence to understand if the control was meant to be temporary or otherwise. क्या होता है कि इस ईयर में मैंने इन्वेस्टमेंट कर लिया लास्ट टाइम में, बिल्कुल ओके, मीन्स फॉर द पर्पस ऑफ अट्रैक्टिंग जस्ट द प्रोविज़न, और ईयर के बाद मैंने उसे लिक्विडेट कर दिया, राइट. तो इट सेल्फ शोज दैट उनका इंटेंशन होल्ड करने का नहीं था. ओके, तो फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग दिस द ऑडिटर विल सी द minutes of meeting of board of directors just subsequent to the year end. Now also why the auditor wanted to know that whether this control or investment was meant to be temporary in nature, because company rules में ऐसा लिखा हुआ है that आप किसी सब्सिडरी को कंसोलिडेशन करने से एक्सक्लूड कर सकते हैं. मीन्स यू जस्ट कांट कंसोलिडेट द अकाउंट्स ऑफ अ सब्सिडरी जिसमें आपका इंटेंशन इन्वेस्टमेंट करने का टेम्प्रोरी नेचर का था. ओके, तो हम लोग हम लोग देखने वाले आगे. कहता है कि वेयर अ कंपोनेंट इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंसोलिडेशन, तो द ऑडिटर शुड एग्जामिन द रीजन फॉर एक्सक्लूजन एंड वेदर सच एक्सक्लूजन इज इन कन्फॉर्मिटी विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. अगर किसी कंपोनेंट को एक्सक्लूड किया गया है ना कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, तो ऑडिटर चेक करेगा कि वाई दिस इज एक्सक्लूडेड, और वो जो एक्सक्लूजन है वेदर इट इज़ इन कन्फॉर्मिटी विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंगली उसे एक्सक्लूड किया गया है नहीं. जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है कि कंपनी के इस रूल में, कंपनी रूल 2006 में, देयर कुड बी टू रीज़न फॉर एक्सक्लूजन, दो रीज़न हो सकते थे एक्सक्लूजन ऑफ सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट. दैट द रिलेशनशिप ऑफ पेरेंट विद द सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी इज इंटेंडेड टू बी टेम्पररी. ओके, सी वन ऑफ द रीज़न टू एक्सक्लूड द जॉइंट वेंचर, associate company or subsidiary company from the consolidated financial statement is to check whether the relationship of parent with subsidiary and all is intended to be temporary. That's why यहाँ पे auditor was trying to determine the relationship. Okay, or the subsidiary, associate, joint venture operates under severe long-term restriction which significantly impairs ability to transfer funds to the parent. तो पहला तो रीज़न है एक्सक्लूजन का कि वेदर द रिलेशनशिप वॉज इंटेंडेड टू बी टेम्पररी, और दूसरा है कि वो सब्सिडरी, एसोसिएट और जॉइंट वेंचर किसी ऐसे लिमिटेशन के अंदर या रिस्ट्रिक्शन के अंदर काम कर रहा है ना, सो दैट दे इज़
दे आर नॉट एबल टू ट्रांसफर फंड्स टू द पेरेंट. ओके, कंपनी रूल्स में ऐसा लिखा हुआ है दैट ये दो रीज़न अगर हो तो यू कैन एक्सक्लूड दैट जॉइंट वेंचर, एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरी फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन. उसके बाद सिमिलरली अंडर द कंपनी दैट 13 इंटरमीडिएट सब्सिडरी इन इंडिया इज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फर्दर इंडियाज 110 also prescribes certain criteria where consolidated financial statement are not required. ओके, इंडेस 110 में भी कुछ ऐसे क्राइटेरिया दिए हुए जहाँ पे यू डोंट नीड टू प्रिपेयर दैट CFS. तो इन सच केसेस द ऑडिटर शुड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द एक्सक्लूजन मेड बाय मैनेजमेंट फॉल्स विद इन दिस कैटेगरी. मतलब अगर आप एक्सक्लूड कर रहे हो तो वो बिल्कुल लॉ के अंदर होने चाहिए, चाहे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो या फिर कंपनी रूल्स वाले क्राइटेरिया में फॉल करता हो. Example, in the case of an entity which is excluded from consolidation on the ground that relationship of parent with the other entity as subsidiary, associate, joint venture is temporary. अगर आप टेम्पररी होने के ग्राउंड पे कि रिलेशनशिप पेरेंट के साथ सब्सिडरी वगैरह का टेम्पररी था, इस कारण अगर आप एक्सक्लूड किए हो ना फ्रॉम कंसोलिडेशन से, तो द ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट द इंटेंशन ऑफ पेरेंट टू डिस्पोज ऑफ द सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट इंटरेस्ट इन जॉइंटली कंट्रोल एंटिटी इन द नियर फ्यूचर एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ऑफ द सब्सिडरी. मतलब ये जो इंटेंशन होता है ना कि मैं इसे परचेज करने के बाद तुरंत ही सेल कर दूंगा, ये वाला इंटेंशन होना चाहिए एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन ओनली, राइट. तभी हम मानेंगे कि जो रिलेशनशिप था वो टेम्पररी था. आफ्टर दैट द ऑडिटर शुड ऑल्सो वेरीफाई दैट रीजन फॉर एक्सक्लूजन आर गिवन इन CFS में उनको इंडिकेट करना पड़ेगा दैट ड्यू टू दिस रीजन आई हैव excluded this component from consolidation. अब if an entity is excluded from the consolidated financial statement for reason other than those allowed by the applicable financial reporting framework, अगर जो लॉ के अंदर दिया हुआ है, जो आपके फ्रेमवर्क में दिया हुआ है, आपने उस रीज़न के अलावा किसी दूसरे रीज़न से एक्सक्लूड किया है, तो द ऑडिटर शुड कंसिडर इट्स इफेक्ट ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट टू बी इशूड. देन द ऑडिटर विल सी दैट वेदर दे नीड टू क्वालिफाई और मॉडिफाई द रिपोर्ट. The next para is telling auditor should also examine whether there is any change in status of component. मतलब component का status change हो गया, like subsidiary से associate बन गया, किसी पहले 50% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट था तो इट वाज सब्सिडरी, उसके बाद इतना कम हुआ कि 20% से ज़्यादा बच गया तो इट केम फ्रॉम सब्सिडरी टू एसोसिएट. ओके, और JV टू एसोसिएट, दैट इज जॉइंट वेंचर टू एसोसिएट और वाइस वर्सा. See, the auditor in such cases should examine whether the changes have been appropriately accounted for in the CFS as required by the accounting standard Indias under the applicable financial reporting framework. See, अगर मान लीजिए इंडियाज में सब्सिडरी के रिलेटेड कुछ ज़्यादा रिक्वायरमेंट थे और एसोसिएट कंपनी के कंसोलिडेशन के रिक्वायरमेंट में कुछ कम प्रिस्क्राइब था. ओके, सो व्हेन अ component become from associate company to subsidiary, in that case you need to comply more, right? So the auditor will check that all the whether the changes have been appropriately accounted in CFS as required by the accounting standard and under the applicable financial reporting framework. Okay, so now next this table prescribe the way that how to prepare consolidated financial statement. So although it is as per old rules, ठीक है, अभी तो इंडियाज के अकॉर्डिंग बनती है मोस्टली, बट लेट्स सी वंस. हाँ, कहता है इन प्रिपेयरिंग द CFS in accordance with this rule, the financial statement of parent and its subsidiary are combined on line by line basis. Okay, by adding together like item of asset, liability, income, expense and cash flow, इन सबको लाइन बाय लाइन ऐड करते जाना है. एंड देन सर्टेन कैलकुलेशंस लाइक determination of goodwill or capital reserve, minority interest and adjustment like elimination of intra-group transactions and all are made in accordance with AS21. Okay, means there are few line items which we have to just add line by line, and certain kind of thing like elimination of intra-group transaction, calculation of minority interest and all will be done as per AS21 or this AS23 in case of associates. Or fine. A parent that has an interest in the jointly controlled entity reports its interest in the consolidated financial statement using proportionate consolidation method in accordance with AS27. जिनका इंटरेस्ट हो जॉइंटली कंट्रोल्ड एंटिटी में, यू कैन से जॉइंट वेंचर, सो वो AS27 के अकॉर्डिंग करेंगे. मैनी ऑफ द प्रोसीजर्स अप्रोप्रिएट फॉर द एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी मेथड एंड द प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड आर सिमिलर टू प्रोसीजर सेट आउट इन द AS21. कहने का मतलब है कि दो मेथड जो होते हैं ना, ये एप्लीकेशन ऑफ इक्विटी मेथड एंड प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड, ये AS21 में जो मेथड दिए हुए उससे काफ़ी सिमिलर है. सिमिलरली नेक्स्ट द प्रोसीजर हैज़ बीन स्पेसिफाइड एज पर Ind AS and it is telling simply कि financial statement of parent subsidiary are combined as per Ind AS 110 on line by line basis. Okay, like asset, liability, income, expense and then related goodwill, capital reserve का calculation इस Ind AS 103 के अकॉर्डिंग होगा. बिजनेस कॉम्बिनेशंस इन्वॉल्विंग एंटिटी और बिजनेस अंडर द कॉमन कंट्रोल वाले shall be accounted for using the
pooling of interest method we will use, and in accordance with India's 103. For the purpose of elimination of intra-group transaction, we have to follow India's 110, and investment in associate and joint venture accounted using the equity method as per India's 28, and then investment in associate and joint venture and all we have to comply with India's 111 also. In a business combination achieved in stages, the acquirer shall remeasure its previously held equity interest in acquiry at its acquisition date fair value. Means all these things will need to comply with India's 103. मतलब बेसिकली जब आप लोग डिटेल में ये सब इंडियस पढ़ोगे तो आपको प्रॉपर समझ में आएगा, बिकॉज इट इज़ फ्रॉम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. सो लेट्स फोकस ऑन द ऑडिटिंग पॉइंट, दैट हम लोग ऑडिट कैसे करेंगे, राइट. सी द ऑडिटर शुड वेरीफाई that the adjustment warranted by the relevant accounting standard under the applicable financial reporting framework have been made wherever required and have been properly approved by the management of the parent. See, for the purpose of consolidation, we need to carry out some adjustment as per the accounting standard. तो ऑडिटर को ये चेक करना है, the auditor should verify that adjustment warranted by the accounting standard, मतलब accounting standard के अकॉर्डिंग जो भी एडजस्टमेंट है वो हैव बीन मेड वेर एवर रिक्वायर्ड, और वो जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं ना उनको पहले अप्रूव कराना पड़ता है मैनेजमेंट ऑफ द पेरेंट से, देन ओनली वो सारे एडजस्टमेंट होते हैं. सो दिस द ऑल्टरनेटिव चेक. फिर द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव्स राइज टू परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट. देखिए जब हम कंसोलिडेट करते हैं तो उसमें दो तरह के एडजस्टमेंट होते हैं, एक तो होते हैं परमानेंट और एक होते हैं करंट पीरियड. करंट पीरियड वाले जो एडजस्टमेंट होते हैं वो एवरी ईयर होते हैं, राइट, और परमानेंट एक बार होता है, यू कैन से. फिर the auditor should also pay attention to off-balance sheet entities which sometimes do not qualify for the definition of subsidiary. However, parent might have transferred risk of various business venture to these entities. Further, de facto control should also be considered. This de facto control is a kind of indirect control kind of thing. It means that investor with less than majority of the voting right, means voting right जो उनका 50% से कम है, but has the practical ability to direct the relevant activities unilaterally. ठीक है, वो कोई मीन्स किसी भी एक्टिविटी के लिए वो डायरेक्ट कर सकते हैं कंपनी को, दिस वे फ्रॉम दिस वे मीन्स दे आर कंट्रोलिंग द एंटिटी. इसके बाद नेक्स्ट पेज पे स्पेशल कंसिडरेशन. द फर्स्ट सब यूनिट इज परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट. बिफोर प्रोसीडिंग दिस आई वुड लाइक टू टेल यू दैट ये जो हम लोगों ने पार्ट कवर किया ना, इट वाज ऑडिटिंग द कंसोलिडेशन. ओके, ये बॉटम में देखेंगे ऑडिटिंग द कंसोलिडेशन, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे प्लानिंग थे, फिर हम लोगों ने देखा दैट फॉर द पर्पस ऑफ चेकिंग द कंप्लीटनेस ऑफ इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपोनेंट व्हाट पॉइंट द अल्टरनेटिव चेक. ओके, फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, राइट. तो ये थोड़ा सा प्रॉपरली देख लेंगे. एंड नाउ आई एम प्रोसीडिंग विद द परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट. सी दीज एडजस्टमेंट आर मेड ओनली ऑन द फर्स्ट occasion or subsequent occasion in which there is change in shareholding of a particular entity which is consolidated. लाइक आई टोल्ड यू कि परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट जो होते हैं वो एक ही बार होते हैं, या तो वो सबसे फर्स्ट बार में होंगे कंसोलिडेशन करने के टाइम, या तो कभी अगर चेंजेज इन शेयर होल्डिंग होती है ना ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी विच इज कंसोलिडेटेड, जो ऑलरेडी कंसोलिडेट हो चुकी है, उसके शेयर होल्डिंग में कुछ अगर चेंजेज होता है सब्सिक्वेंट ओकेजन पे, सो इन दैट केस परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट होता है. नाउ इट इज़ ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज डिटर्मिनेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व एज पर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है. एंड सेकेंड इज determination of amount of equity attributable to minority or non-controlling interest. Minority means the area which is not controlled by parent. Okay, means वो area जिस पे कंट्रोल नहीं है. लाइक अगर मान लीजिए कि 60-70% अगर कंट्रोल है पेरेंट का, तो 30% इज द माइनॉरिटी पार्ट, और वी कैन ऑल्सो कॉल इट नॉन कंट्रोलिंग. ओके, दैट मीन्स अदर देन कंट्रोलिंग. तो ये दोनों चीज़ का जो डिटर्मिनेशन होता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एंड दिस बोथ फॉल्स अंडर द पार्ट ऑफ परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट. तो अब इसके रिगार्डिंग ये देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट. द ऑडिटर शुड वेरीफाई दैट द अबव कैलकुलेशन हैव बीन मेड अप्रोप्रिएटली. द ऑडिटर शुड पे पर्टिकुलर अटेंशन टू द determination of pre-acquisition reserves of the component, date of investment in components assume importance in this regard. ठीक है, ये pre-acquisition reserve का determination properly करना है, and the date of investment is also important. The auditor should also examine whether the pre-acquisition reserve have been allocated appropriately between the parent and the minority interest. ये जब pre-acquisition reserve determine हो जाता है, then it need to be allocated between the parent and minority interest as per the accounting standard. ठीक है, तो वो appropriately distribute हुआ है या नहीं. Auditor should also verify the changes that might have taken place in this permanent adjustment on account of subsequent acquisition of shares in the component, disposal of the component in the subsequent year. See, परमानेंट एडजस्टमेंट के टाइम में, लाइक आई टोल्ड यू दैट अगर कोई चेंजेज होता है सब्सिक्वेंट इन इन्वेस्टमेंट, इधर वो बढ़े या घटे, सो इन दैट केस हम लोग ये एडजस्टमेंट करते हैं.
तो दैट द ऑडिटर नीड टू चेक कि कोई ऐसे चेंजेज आए हैं क्या, वेरीफाई द चेंजेस दैट माइट हैव टेकन प्लेस। उसके बाद नेक्स्ट पैरा इज इट मे हैपन दैट वाइल वर्किंग आउट द परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट इन द केस ऑफ वन सब्सिडरी गुडविल अराइजेज एंड इन द केस ऑफ अनदर सब्सिडरी कैपिटल रिजर्व अराइजेज। ओके, मीन्स आप जब परमानेंट कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट करते हैं तो इसका सबसे पहला वाला था ना कि यू हैव टू डिटरमाइन द गुडविल और कैपिटल रिजर्व, ये दिस वन, ठीक है। तो ये करते टाइम ऐसा हो सकता है कि इन केस ऑफ वन सब्सिडरी यू आर गेटिंग गुडविल एंड इन अदर यू आर गेटिंग कैपिटल रिजर्व। तो द पेरेंट में चूज टू नेट ऑफ दिस अमाउंट टू डिस्क्लोज अ सिंगल अमाउंट इन द consolidated balance sheet where permitted by the applicable financial reporting framework. If your financial reporting framework allow, you can just net off the amount of goodwill and capital reserve and show single figure in the CFS. Further, in such cases, the auditor should verify that the gross amount of goodwill and capital reserve arising on the acquisition of various subsidiaries have been disclosed in the notes to the consolidated financial statement to reflect the excess shortage over the parent's portion of the subsidiary equity. See, even if your financial reporting framework allow and you have shown the net amount in the financial statement, ना आपको notes to account में gross figure show करना पड़ेगा। Okay, gross amount of goodwill and capital reserve for the purpose of proper disclosure. फिर आता है current period consolidation adjustment. These are the adjustments that are made in the accounting period for which the consolidation of financial statement is done. That means ये सब जो एडजस्टमेंट होते हैं ये एवरी ईयर होते हैं, राइट। आप जितनी बार बनाओगे एवरी ईयर यू नीड टू डू दैट। एंड ऑल्सो मेजरली दीज एडजस्टमेंट पर्टेन्स टू एलिमिनेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट बैलेंसेस इंक्लूडिंग, मतलब जब दो अकाउंट्स मिल रहा है तो जो इंट्रा ट्रांजेक्शन होगा ना सब्सिडी होल्डिंग के बीच में जो आपस में ट्रांजेक्शन होगा उसके एलिमिनेशन से रिलेटेड ही एडजस्टमेंट होता है ये करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट। ओके, सी इंट्रा ग्रुप को इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव्ड है तो उसकी एडजस्टमेंट। अनरियलाइज इंट्रा ग्रुप प्रॉफिट ऑन असेट एक्वायर्ड, लाइक आपने अगर सपोज कोई स्टॉक ट्रांसफ़र किया था तो वो अगर प्रॉफिट लगा के ट्रांसफ़र किया था तो दैट इज़ कॉल्ड अनरियलाइज प्रॉफिट, राइट। मीन्स वो अगर सोल्ड नहीं हुआ है और स्टिल वो अगर स्टॉक में है तो फिर उसका एडजस्टमेंट किया जाएगा। रिकॉर्ड डेफर्ड टैक्सेस ऑन अनरियलाइज इंटर कंपनी प्रॉफिट एलिमिनेशन इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 12, इसका कंप्लायंस होना है इंट्रा ग्रुप इंडेटनेस, अगर आपस में कुछ डेट लिया गया हो, लोन काइंड ऑफ थिंग। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू हार्मोनाइजिंग द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी बिंग फॉलोड बाय पेरेंट एंड इट्स कंपोनेंट, मतलब अगर पेरेंट और कंपोनेंट कोई अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं तो यू नीड टू डू द एडजस्टमेंट, ये भी आती है करंट के अंदर, ठीक है। एडजस्टमेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पेरेंट एंड कंपोनेंट फॉर रिकॉग्नाइज सब्सिक्वेंट इवेंट्स और ट्रांजेक्शन दैट अकर बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द CFS। ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कुछ एडजस्टमेंट करेंगे रिलेटेड टू कोई सब्सिक्वेंट इवेंट या ट्रांजैक्शन जो कि बैलेंस शीट के डेट और ऑडिटर रिपोर्ट के डेट के बीच में हुआ होगा। अगर उस इवेंट से ये वाला जो सब्सिक्वेंट इवेंट हुआ ना इससे अगर कुछ इफेक्ट पड़ता है ऑन द CFS तो विल ऑल्सो डू द एडजस्टमेंट फॉर द सेम। अब देखिए दो तरह के ये सब्सिक्वेंट इवेंट होते हैं जो हो सकते हैं बिटवीन द बैलेंस शीट डेट एंड डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। द फर्स्ट टाइप ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट कंसिस्ट ऑफ इवेंट और ट्रांजैक्शन दैट प्रोवाइड additional evidence about condition that existed at the date of financial statement, including the estimates inherent in the process of preparing financial statement. So basically we also call them adjusting event. अब देखिए इसमें हुआ क्या ना कि subsequent event कुछ ऐसा हुआ that provide additional evidence about any condition जो कि आपके date of financial statement पे exist करती थी। Okay, so उस तरह की अगर कोई transaction हो तो you can adjust it. That's why it is called adjusting event. Further, the second type of subsequent event consists of event that provide evidence about condition that did not exist at the date of financial statement but arose subsequent to that date. Okay, means आपको कुछ ऐसे चीज़ का evidence मिल रहा है जो कि अकर ही हो रहा है after the date of financial statement. So those are non-adjusting event. So event occurring after balance sheet date which do not require adjustment would not normally require disclosure. मतलब कि जिस इवेंट का आपको एडजस्टमेंट नहीं करना है उसका आपको डिस्क्लोजर भी नहीं देना है, although they may be of such significance that they may require a disclosure in the report of approving authority in case of accounting standard and in the financial statement in case of Ind AS. For such event the following shall be disclosed. So basically the disclosure is not required, but अगर उसका significance कुछ ऐसा होगा that you need to require it to disclose. Okay, so for the purpose of disclosure in accordance with the Ind AS you have to disclose the same in following manner. Okay, you have to just indicate the nature of the event. After that an estimate of its financial effect, means you have to also figure out that उस event के होने से financial effect क्या होगा और statement that such an estimate cannot be made. अगर ये estimate नहीं हो पाता है तो आपको एक statement देना होगा that such statement cannot be made. Fine. So this was about the subsequent event. और फिर से वापस आते हैं current period adjustment के बारे में. Adjustment for the effect of significant transaction or other event that occur between the date of component balance sheet and not
ऑलरेडी रिकॉग्नाइज इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब ये पहले जो हम लोग बात की ना कि बैलेंस शीट डेट और ऑडिटर्स रिपोर्ट के डेट तक, तो वो पेरेंट के बैलेंस शीट के था। अब ऐसा कोई अगर ट्रांजेक्शन कंपोनेंट के बैलेंस शीट के डेट से होते हैं, सो इन दैट केस उसके एडजस्टमेंट का बात कर रहे हैं यहाँ पे। रिपोर्ट ऑन द ग्रुप्स कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट व्हेन द स्टेटमेंट कंपोनेंट टू बी यूज्ड फॉर कंसोलिडेशन आर नॉट ड्रॉन अप टू द सेम बैलेंस शीट एज दैट ऑफ पेरेंट। सेम बात है, तो उसके वैसे किसी ट्रांजेक्शन का एडजस्टमेंट अगर करना हो तो। फिर इन केस ऑफ फॉरेन कंपोनेंट एडजस्टमेंट टू कन्वर्ट अ कंपोनेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर लोकल गैप टू द गैप अंडर विच CFS आर प्रिपेयर्ड। अगर कोई ऐसे सब्सिडरी जो कि फॉरेन के है, तो उसके ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो कि वहाँ के लोकल गैप मतलब फॉरेन के गैप के अकॉर्डिंग बना होगा, उससे कन्वर्ट करना है टू द गैप अंडर विच अपना CFS जो प्रिपेयर हुआ है। ओके। फिर मूवमेंट इन इक्विटी एट्रीब्यूटेबल टू माइनॉरिटीज इंटरेस्ट, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट को जो इक्विटी ट्रांसफ़र होता है उसका पोर्शन पता करना। प्लस इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट अंडर इंडियाज नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन नेगेटिव बैलेंस, मतलब इंडियाज के अकॉर्डिंग जो नॉन कंट्रोलिंग बैलेंस है उसका नेगेटिव बैलेंस भी हो सकता है। अनलाइक अर्लियर एज सच पर इफ द नेट वर्थ ऑफ सब्सिडियरी नेगेटिव नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कुड हैव डेफिसिट बैलेंस। सेम वे मीन्स ऐसा प्रोविजन पहले भी था इंडियाज 27 के अकॉर्डिंग। फिर एडजस्टमेंट ऑफ द डेफर्ड टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ टेम्पररी डिफरेंस अराइजिंग आउट ऑफ एलिमिनेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम द इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन। आप जब इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन लाइक अनरियलाइज प्रॉफिट काइंड ऑफ थिंग जब आप एलिमिनेट करते हैं ना, तो उस पर डेफर्ड टैक्स का भी इफेक्ट पड़ता है, तो उसका प्रॉपरली एडजस्टमेंट हुआ है कि नहीं एज पर द रिलेवेंट इंडेस। द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर मेड इन मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स केप्ट फॉर द पर्पस बाय द पेरेंट। देखिए आप जो भी एडजस्टमेंट करते हैं ना, इसको बिल्कुल रिकॉर्ड्स में रखते हैं। ओके, द ऑडिटर शुड रिव्यू द मेमोरेंडम रिकॉर्ड टू वेरीफाई द एडजस्टमेंट एंट्री मेड इन द प्रिपरेशन ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए मैनेजमेंट ने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया, वट एवर एडजस्टमेंट दे हैव मेड दे हैव जस्ट रिकॉर्डेड द सेम। ओके, और वो जो रिकॉर्डिंग रखा है ना उसको ऑडिटर लोग रिव्यू करेंगे। ऑडिटर शुड रिव्यू द मेमोरेंडम रिकॉर्ड टू वेरीफाई कि वो जितने भी एडजस्टमेंट हुए हैं वो प्रॉपर हुए हैं या नहीं। फाइन। सो अपार्ट फ्रॉम रिव्यूइंग द मेमोरेंडम रिकॉर्ड द ऑडिटर शुड एंटर एलिया, मतलब ये तो मेमोरेंडम रिकॉर्ड चेक करना ही है, मतलब अबाउट वॉट एवर यू हैव डन एडजस्टमेंट फॉर द पर्पस ऑफ दिस कंसोलिडेशन। इसके अलावा ऑडिटर को और क्या चेक करना है कि वेरीफाई दैट इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन एंड अकाउंट बैलेंसेस हैव बीन एलिमिनेटेड। देखिए बेसिकली जो ऊपर हम लोगों ने पढ़ा ना कि ये सब करंट पीरियड एडजस्टमेंट होते हैं, तो वही सब अब ऑडिटर 1 बाय 1 चेक करेगा। तो इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन और अकाउंट बैलेंस एलिमिनेट हो चुके हैं, दिस द ऑडिटर नीड टू चेक। द ऑडिटर नीड टू चेक दैट द CFS हैव बीन प्रिपेयर्ड यूजिंग यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, मतलब ये जो कन्वर्सन वगैरह के रिक्वायरमेंट थे कन्वर्सन होकर बिल्कुल एक अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग CFS प्रिपेयर हुआ है। फिर वेरीफाइड एडिक्वेट डिस्क्लोजर AS 21 के अकॉर्डिंग हो गया है CFS में ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी इन केस, मतलब AS 21 में दिया हुआ है कि अगर किसी अनफोर्सिन रीज़न की वजह से आप डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी किसी एरिया में अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको वो मीन्स इंडिकेट कर देना है, राइट, उसका प्रॉपरली डिस्क्लोज होना चाहिए। सो इट वॉज इम्प्रैक्टिकल टू हार्मोनाइज दैम, मतलब अगर उसको हार्मोनाइज करना अगर मीन्स इम्पॉसिबल लग रहा है, सो इन दैट केस यू कैन proceed with the different accounting policy subject to condition that you have to give a proper disclosure. Applying a requirement is impracticable when the entity cannot apply it after making every reasonable effort to do so, but while preparing CFS under Ind AS, auditor should ensure that appropriate adjustments are made to that group members financial statement in preparing the CFS to ensure conformity with the group's accounting policy in accordance with Ind AS 110. See, old AS में तो वैसा रिक्वायरमेंट थी, बट न्यू वाले Ind AS में क्या है, कहता है कि इन केस आप नहीं कर पा रहे हैं ना चेंज, तो ठीक है, बट आपको सुइटेबल एडजस्टमेंट उसके रिस्पेक्ट में करना है। कहाँ पे? इन द मेंबर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन प्रिपेयरिंग द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल टू इंश्योर दैट कंफर्मिटी विद द ग्रुप्स अकाउंटिंग पॉलिसी, राइट, मीन्स जो भी डिफरेंस के अकाउंट पे जो भी एडजस्टमेंट होगा दैट यू नीड टू डू। सी यहाँ पे लिखा हुआ है ना दैट यहाँ पे, बट वाइल प्रिपेयरिंग CFS अंडर Ind AS, जब आप Ind AS में प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑडिटर शुड इंश्योर दैट अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट आर मेड टू दैट ग्रुप मेंबर्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो ग्रुप मेंबर थे जो कि कंपोनेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट था उसका प्रॉपर एडजस्टमेंट हो गया है इन प्रिपेयरिंग द CFS टू इंश्योर कंफर्मिटी विद द ग्रुप का अकाउंटिंग पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद Ind AS 110। ओके, सो AS में तो ऐसा बोला है कि इट इज प्रैक्टिकली वो अगर पॉसिबल नहीं है तो आप उसका डिस्क्लोजर देके रहने दीजिए, बट Ind AS में आपको एडजस्टमेंट करना होगा। फिर वेरीफाई द एडजस्टमेंट मेड टू हार्मोनाइज द डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसी, ये जो हार्मोनाइज का रिक्वायरमेंट है सेम चीज़ है। अगर मीन्स क्या एडजस्टमेंट मैनेजमेंट ने किया टू कन्वर्ट अ कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर कंपोनेंट गैप टू द गैप इंडिया वाला, ठीक है। वेरीफाई द कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी या नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू डेफर्ड टैक्स करना है चेक।
Verify that income and expense of subsidiary are included in CFS from the date it gains control until the date when the entity ceases to control the subsidiary. Okay, जिस डेट से कंट्रोल आया ना उस डेट से इनकम एंड एक्सपेंस कंसोलिडेट होगा. Fine. Further, such income and expense are based on the amount of the asset and liability recognized in CFS at the acquisition date. Same चीज है. Further says, the auditor should gain an understanding of the procedure adopted by the management of enterprise to make the above mentioned adjustment. ये जितना भी एडजस्टमेंट हम लोगों ने यहाँ या ये प्रीवियस पेज में देखा ना, the auditor will try to understand the that what procedures is adopted by the management. Okay, this helps the auditor in reducing the audit risk to an acceptably low level. देखिए हम लोग जब प्रोसीजर जानना चाहते हैं ना, अगर चेक करने से पहले मैनेजमेंट से ही प्रोसीजर पूछ लेंगे तो क्या पता हमें उस टाइम ही पता चल जाएगा दैट वेदर दे हैव done this correctly or not. Okay, because we are technically strong, so that's why it's telling that first try to understand their method of doing all these above adjustment, whether permanent consolidation adjustment or temporary consolidation adjustment. उसके बाद one of the important adjustment that may required in the current period is determination of impairment loss that might exist for goodwill arising on consolidation. फिर goodwill arising on consolidation is carried at the value determined at the date of acquisition of the component and the same is to be tested for impairment loss at every balance sheet date. See, it is telling that goodwill तो वो permanent consolidation का पार्ट बनता है, तो ये सिर्फ उस डेट पे डिटरमाइन होता है, वैल्यू डिटरमाइन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन, जिस दिन कंपोनेंट को एक्वायर किया गया हो. बट उसको इम्पेयरमेंट के लिए हर बैलेंस शीट डेट पे मीन्स एवरी ईयर उसका इम्पेयरमेंट के लिए चेक होता है. तो इनकेस अगर गुडविल में कोई इम्पेयरमेंट का सीन है तो वी हैव टू गिव इफेक्ट फॉर दैट. सो ये जो इम्पेयरमेंट की रिक्वायरमेंट है, दिस ऑल्सो ऑडिटर विल चेक. देखिए, ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर एनी इम्पेयरमेंट लॉस हैज बीन डिटरमाइंड बाय द पेरेंट, मीन्स पेरेंट के अकॉर्डिंग कोई इम्पेयरमेंट लॉस है कि नहीं. इफ यस, द ऑडिटर शुड एग्जामिन द प्रोसीजर फॉलोड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. Further, the auditor should satisfy himself that the amount of impairment loss determined is fair. Okay, means ये जो impairment loss जो determine किया गया, he will check from every aspect that whether the same is fair or not. In case the impairment loss in goodwill of a component has been determined in foreign currency, so the auditor should verify if any amount of loss in local currency need to be adjusted from the currency translation reserve on account of movement in the exchange rate from the date when the goodwill was first accounted for in the CFS to the date डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस. देखिए, कभी क्या होता है कि आप अगर इम्पेयरमेंट लॉस को फॉरेन करेंसी में डिटरमाइन किए है ना, तो ऑडिटर चेक करेगा कि अगर वो मीन्स फॉरेन करेंसी में इफ यू विल कन्वर्ट इट टू लोकल करेंसी, और उस समय अगर आपको कोई लॉस होता है, फॉरेन एक्सचेंज अगर लॉस होता है, तो उसकी एडजस्टमेंट की जाती है फ्रॉम करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व ऑन अकाउंट ऑफ मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट फ्रॉम द डेट व्हेन गुडविल वाज फर्स्ट अकाउंटेड. जब हम सबसे पहली बार गुडविल को अकाउंट किए थे ना, उस डेट से लेके फ्रॉम द डेट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस, इस पीरियड के लिए एडजस्टमेंट होगा. किस चीज़ के लिए? अगर फॉरेन करेंसी लॉस है ऑन अकाउंट ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस इन फॉरेन करेंसी. फर्दर, द ऑडिटर नीड टू ऑल्सो परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू अंडरस्टैंड एंड वेरीफाई विद इंट्रा ग्रुप लॉसेस verify whether intergroup losses are indicating an impairment loss that requires recognition in the consolidated financial statement. मीन्स इंट्रा ग्रुप जो कुछ लॉस है उसमें कोई इम्पेयरमेंट लॉस का तो पार्ट नहीं है. ओके, जिसको we need to recognize in the CFS. Apart from verifying that the calculation and disclosure regarding minorities interest have been made appropriately, auditor should also determine in cases where the minority interest share of loss exceed the minority interest share of the equity. This means calculation तो चेक करना ही है कि calculation और disclosure regarding minorities properly हुआ है कि नहीं. The auditor will also determine कि where the minority interest का share of losses exceed कर जाता है minority interest का share of equity से. Okay, तो द एक्सेस एंड एनी फर्दर लॉसेज, ये जो एक्सेस लॉस हो रहा है ना एप्लीकेबल टू माइनॉरिटी इंटरेस्ट हैव बीन अकाउंटेड फॉर इन अकॉर्डेंस विद द रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. जब भी उनके शेयर के मतलब इक्विटी का जो शेयर है उससे ज़्यादा माइनॉरिटी का लॉस हो जाता है, सो इन दैट केस सच लॉसेज विल बी अकाउंटेड एज पर द रिलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. दिस द ऑडिटर नीड टू चेक. फाइन. द नेक्स्ट पैरा पर्टेन्स टू द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सी, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपोनेंट यूज्ड इन द कंसोलिडेशन should be drawn up to the same reporting date as that of parent. कहते हैं हम जो कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंसोलिडेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, उनका रिपोर्टिंग डेट सेम रहना चाहिए एज डेट ऑफ पेरेंट. ऐसा नहीं कि आप 18-19 का कंसोलिडेट कर रहे हो किसी कंपोनेंट के 2021 से, राइट. तो इफ़ इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू ड्रॉ अप द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर कंपोनेंट टू सच डेट एंड अकॉर्डिंगली दोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ड्रॉन अप टू डिफरेंट रिपोर्टिंग डेट. So adjustment should be made for the effect of significant transaction or other event that occur between those dates and the date of parent's financial statement.
इन केस किसी अनफोर्सीन रीजन से ऐसा हो रहा है दैट यू आर नॉट एबल टू ड्रॉ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपोनेंट टू अ सिमिलर डेट, तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. एडजस्टमेंट शुड बी मेड. किस बात का? फॉर द इफेक्ट ऑफ सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और अदर इवेंट दैट अकर बिटवीन दोज डेट्स एंड डेट ऑफ पेरेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके. फिर इन एनी केस द डिफरेंस बिटवीन रिपोर्टिंग डेट शुड नॉट बी मोर देन 6 मंथ इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर एएस एंड 3 मंथ इन केस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर इंड एएस. देखिए मैंने बोल दिया कि अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट, बट ये ध्यान रहे कि जो रिपोर्टिंग डेट्स होंगे ना इसमें 6 महीने का डिफरेंस एएस के अंडर अलाउड है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग एज पर ओल्ड एस, और 3 मंथ्स का डिफरेंस अलाउड है अंडर इंड एस. फाइन. सो दिस यू नीड टू कीप इन माइंड. फिर द ऑडिटर ऑफ CFS शुड रिव्यू अदर कंपोनेंट रिजल्ट्स बिटवीन इट्स फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डेट एंड दैट ऑफ द पेरेंट फॉर सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन और अदर इवेंट that have taken place during the period and therefore need to be reflected in the CFS. ओके. सेम बात है कि अगर उस गैप में कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन हुआ होगा ना तो उसको CFS में रिफ्लेक्ट किया जाएगा. रिकॉग्निशन शुड बी गिवन बाय डिस्क्लोजर और अदरवाइज टू द इफेक्ट ऑफ द इंटरवीनिंग इवेंट विच मटेरियली अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन और कैश फ्लो. मतलब कि जो भी कुछ इंटरवीनिंग इवेंट है ना उसको हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्क्लोजर और अदरवाइज टू द इफेक्ट विच मटेरियलिटी अफेक्ट द फाइनेंशियल पोजीशन. मीन्स अगर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हुआ होगा जो कि मटेरियली अफेक्ट कर रहा होगा फाइनेंशियल पोजीशन को, इन दैट केस वी विल रिकॉग्नाइज सच ट्रांजेक्शन बाय गिविंग अ डिस्क्लोजर. ओके. उसके बाद द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन ऑफ कंसिस्टेंसी रिक्वायर्स द ऑडिटर ऑफ CFS टू कंसिडर वेदर द लेंथ ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड एंड एनी डिफरेंस इन फाइनेंशियल ईयर एंड्स आर सेम फ्रॉम पीरियड टू पीरियड. ये कंसिस्टेंसी का जो एजम्पशन है इसके वजह से ही ऑडिटर को इस बात का ध्यान रखना है दैट रिपोर्टिंग पीरियड का लेंथ जो है वो सेम हो. If there have been any changes in the respective reporting period of the component included in CFS that have a material effect on the financial statement, the auditor should ensure that the entity discloses such changes and the manner of treatment in the financial statement. अगर कोई कंपोनेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसा है जो कि ये पीरियड के कंसिस्टेंसी को फॉलो नहीं कर रहा है, कभी 12 मंथ्स के बैलेंस शीट बना रहे हैं, कभी 9 मंथ्स के बना रहे हैं, सो इन दैट केस द ऑडिटर को इंश्योर करना है कि एंटिटी ने डिस्क्लोज किया है वो चेंजेज एंड द मैनर ऑफ ट्रीटमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके. Okay, and after this one circular is given of MCA, okay, that came related to schedule 3. See, MCA has issued circular number itna dated this, stating that schedule 3 read with applicable accounting standard does not envisage that company while preparing its CFS merely repeats the disclosure made by it under the separate financial statement being consolidated. Means whatever disclosures you have made in your standalone financial statement, you don't need to repeat all those things in your CFS. Okay. कहता है इन द CFS द कंपनी वुड नीड टू गिव ऑल डिस्क्लोजर रिलेवेंट टू CFS ओनली. CFS में जितना रिलेवेंट है यू जस्ट डिस्क्लोज दैट, यू डोंट नीड टू रिपीट ऑल दोज विच यू हैव मेड इन द स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फर्दर AS21 है जो कि सर्टेन प्रिंसिपल इट लेज डाउन सर्टेन प्रिंसिपल दैट शुड बी ऑब्जर्व while giving the information which is part of separate financial statement of the component but that need not be reported in the notes and other explanatory material of the consolidated financial statement. मीन्स AS21 में कुछ प्रिंसिपल दिया हुआ है जिसका ध्यान रखना है हम लोगों को while giving the information which is part of separate financial statement. आप अगर कंपोनेंट के किसी डिस्क्लोजर को CFS के नोट्स का पार्ट बनाते हैं तो वी नीड टू जस्ट कीप इन माइंड सर्टेन प्रिंसिपल एज स्पेसिफाइड इन AS21. अब इसके रिगार्डिंग लिखा है द ऑडिटर शुड एग्जामिन दैट द नोट्स रिक्वायर्ड बाय द एप्लीकेबल स्टैंडर्ड विच आर नेसेसरी फॉर प्रेजेंटिंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ CFS हैव बीन इंक्लूडेड इन द CFS एज एन इंटीग्रल पार्ट. मतलब CFS में भी नोट्स टू अकाउंट जाता है, राइट? तो उसमें डिस्क्लोजर प्रॉपरली है और वो प्रॉपरली प्रिपेयर किया गया हो. दिस द ऑडिटर नीड टू इंश्योर. फिर एग्जामिन दैट एडिशनल स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज इन द सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सब्सिडरी अंडर पेरेंट हैविंग बीन बियरिंग ऑन द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ CFS हैव बीन डिस्क्लोज इन द CFS आल्सो. कहता है कि कोई भी एडिशनल स्टैट्यूटरी इन्फॉर्मेशन जो कि डिस्क्लोज किया गया हो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, सेपरेट मीन्स स्टैंड अलोन. ओके. तो अगर उस डिस्क्लोजर का बियरिंग होगा दैट मीन्स उसका इफेक्ट अगर होगा ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ CFS तो उसे भी डिस्क्लोज करना है CFS में. देखिए ये जितना भी पॉइंट इस चैप्टर में ऐसा आ रहा है ना कि ऑडिटर नीड टू चेक, तो वो ऑडिट के प्रोसीजर में आ रहा है. ये पार्ट आप लोगों को बहुत ही ध्यान से रखना है. जैसे हम लोगों ने परमानेंट एडजस्टमेंट पढ़ा तो उसमें क्या होता है, परमानेंट एडजस्टमेंट वो पढ़ा, फिर क्या होता है टेम्पररी एडजस्टमेंट वो पढ़ा, एंड देन वी हैव सीन दैट हाउ द ऑडिटर विल चेक दैट दोज एडजस्टमेंट हैज़ बीन कैरिड आउट और नॉट. हम लोग ऑडिटिंग पढ़ रहे हैं ना, सो वी डोंट हैव टू फोकस मोर ऑन दैट हाउ द adjustment is being made. We have to check that whether the adjustment is made as per the accounting standard or not. Okay. Further, last line of this page, in addition, the information required pursuant to Schedule 3 to Companies Act should be disclosed. Okay, Schedule 3 के अकॉर्डिंग जो भी डिस्क्लोजर होना चाहिए दैट तो वो तो होगा ही. ओके. फिर एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे.
एग्जाम्पल इट्स अ काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल क्यों लिखा हुआ है यहाँ, सी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी डिस्क्लोज इन द CFS सेपरेटली फॉर द पेरेंट एंड ईच ऑफ इट्स कॉम्पोनेंट, मतलब पेरेंट्स और हर कॉम्पोनेंट के लिए ये इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्लोज करना है. अमाउंट ऑफ नेट एसेट एंड नेट एसेट एज अ परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड नेट एसेट, दैट मीन्स आपको नेट एसेट का अमाउंट और उसके परसेंटेज एज अ कंसोलिडेटेड नेट एसेट बतानी है. फिर अमाउंट ऑफ शेयर इन प्रॉफिट और लॉस एंड द परसेंटेज शेयर इन प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज ऑफ कंसोलिडेटेड प्रॉफिट और लॉस, मतलब कि ये देखिए पेरेंट और कंपोनेंट दोनों के शेयर ऑफ प्रॉफिट देखना है और कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखना है, उसका परसेंटेज आपको बताना है. फाइन, अमाउंट में एज वेल एज परसेंटेज में. अमाउंट इन OCI दैट इज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एंड द परसेंटेज ऑफ OCI एज अ परसेंटेज कंसोलिडेटेड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये इंडिया के अंदर आता है. ओके इसके बाद है कि कंसोलिडेशन का जो एडजस्टमेंट है, इट शुड be ensured that these are either disclosed as a single line item separately or adjusted in the information that is net asset disclosed for the parent and its each component. जैसे हम लोग एलिमिनेशन ऑफ जो भी इंट्रा ग्रुप ट्रांजेक्शन करते हैं ना, वो हम लोग को या तो सिंगल आइटम में शो करना है या वी शुड डिस्क्लोज इट टू द नेट एसेट. कहता है इंडियाज 110 डज नॉट गिव अ लिस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज अ पार्ट ऑफ सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कॉम्पोनेंट बट दैट नीड टू बी रिपोर्टेड इन द नोट्स एंड अदर एक्सप्लेनेटरी मटेरियल ऑफ द CFS. हम लोगों ने अभी बात किया ना कि कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जो कि कंपोनेंट के स्टैंड लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बट दैट शुड बी कम इन द नोट्स ऑफ CFS ऑल्सो. तो ऐसा कोई लिस्ट अभी तक इंडेस नहीं दिया है. ओके, हाउएवर बेस्ड ऑन सेक्शन 129 सबसेक्शन 4 एंड MCA सर्कुलर एज रेफर्ड अबव, इट कैन बी कंस्टिट्यूट दैट इवन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर इंड AS ओनली दो डिस्क्लोजर शुड बी गिवन विच आर रिलेवेंट टू CFS. सेम बात रिपीट किया है कि जो CFS के लिए रेलेवेंट होगा दैट वी विल टेक फ्रॉम स्टैंड अलोन टू द CFS का नोट्स. ओके, फिर बेस्ड ऑन द अबव डिस्कशन इन केस ऑफ कंपनीज द इन्फॉर्मेशन सच ए फॉलोइंग गिवन इन द नोट्स टू सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट सब्सिडी नीड नॉट बी इंक्लूडेड इन CFS. नीड नॉट मतलब ये जो लिस्ट दिया हुआ है इसे हमें CFS के नोट्स में इंक्लूड नहीं करना है. ध्यान से देखेंगे इसे. 1 सेकेंड. सोर्स फ्रॉम विच बोनस शेयर, तो देखिए बोनस शेयर हमें मीन्स किस सोर्स से हम लोगों ने इशू किया, लाइक कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट से किया है या फ्री रिजर्व से किया है या सिक्योरिटी प्रीमियम से किया है. डिस्क्लोजर ऑफ ऑल अनयूटिलाइज्ड मनी आउट ऑफ द इशू इंडिकेटिंग द फॉर्म इन विच सच अनयूटिलाइज्ड फंड्स हैव बीन इन्वेस्टेड, मतलब इशू में कितने फंड हमारे अनयूटिलाइज्ड रह गए इसके रिगार्डिंग डिस्क्लोजर एंड इंडिकेटिंग द फॉर्म इन विच सच अनयूटिलाइज्ड फंड्स हैव बीन इन्वेस्टेड, मतलब जो भी फंड अनयूटिलाइज्ड रह गया इशू से उसे हमने कैसे इन्वेस्ट किया है, दैट वी नीड नॉट टू डिस्क्लोज. डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड अंडर MSME एक्ट के अंदर जो डिस्क्लोजर है वी डोंट नीड टू डिस्क्लोज इन द CFS का नोट. उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी आपको नहीं डिस्क्लोज करना है, जो कि सेपरेटली क्लासीफाई कर रहा हो ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड अदर इन्वेस्टमेंट शोइंग द नेम ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट जहां आपने शेयर और डिवेंचर या इन्वेस्टमेंट हैव बीन मेड. ओके, एंड द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट सो मेड इन सच बॉडी कॉर्पोरेट, नो नीड टू डिस्क्लोज. राइट, वैल्यू ऑफ इंपोर्ट कैलकुलेटेड ऑन CIF बेसिस बाय द कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ये आप अगर देखोगे शेड्यूल 3 तो उसके नोट्स में ये डिस्क्लोज करना होता है, बट दिस यू अगेन डोंट नीड टू डिस्क्लोज इन द नोट्स ऑफ CFS. उसके बाद एक्सपेंडिचर इन फॉरेन करेंसी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन अकाउंट ऑफ रॉयल्टी, नो हाउ don't need to disclose. Value of all imported raw material, spare part, component consumed during the financial year, no need to disclose. Amount remitted during the year in foreign currency on account of dividend with a specific mention of the number of non-resident shareholders, no requirement for the disclosure. Earning in foreign exchange classified under the following head. इतने हेड में जो डिस्क्लोजर होती है फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग इन फॉरेन एक्सचेंज, ओके, दैट यू ऑल्सो डोंट नीड टू डिस्क्लोज इन द CFS. However, notwithstanding the above, मतलब ignoring the above point, the auditor need to ensure compliance with disclosure requirement of applicable accounting standard and other applicable law for CFS. मतलब कि ऑडिटर ये देखेंगे कि CFS के जो भी डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट है वो कंप्लाई हुए है कि नहीं. ओके, दिस द ऑडिटर नीड टू चेक प्रॉपरली. Okay, so moving to the next heading, management representation, and we all know that SA 580 governs written representation, right? So what's the role of this management representation in audit of consolidated financial statement is, see, SA 580 requires the auditor to obtain written representation from management and TCWG. Okay, so the auditor of the CFS should obtain evidence that management of parent acknowledge its responsibility for a true and fair presentation of CFS in accordance with financial reporting framework applicable to the parent and that parent management has approved the CFS. ये सेम रिक्वायरमेंट है जो कि मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन में है. हम लोग एक्चुअली में ये रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, वी ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट, दैट मैनेजमेंट ये समझती है कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक्नॉलेज करती है अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अ ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बस यहाँ पे चेंज इतना है कि
ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन ऑफ CFS लिखा हुआ है, ओके, इन अकॉर्डेंस विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जो कि एप्लीकेबल है, प्लस पेरेंट के मैनेजमेंट ने अप्रूव कर दिया है CFS। इतनी बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज करती है मैनेजमेंट, फाइन, ये हमें रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना है। इन एडिशन द ऑडिटर ऑफ CFS ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम पेरेंट मैनेजमेंट ऑन मैटर्स मटेरियल टू द CFS। जो भी मैटर हमें CFS के रिलेटेड मटेरियल लगेंगे, वी विल ऑब्टेन द रिटर्न रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट ऑफ पेरेंट कंपनी। अब ये रिप्रेजेंटेशन का कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। कंप्लीटनेस ऑफ कंपोनेंट इंक्लूडेड इन CFS, मतलब ये जो CFS में आपने जितना कंपोनेंट इंक्लूड किया है ना, इतना ही है, इसके अलावा और नहीं है। कंप्लीटनेस, इसके रिगार्डिंग वी विल टेक रिप्रेजेंटेशन, और रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो रिटर्न होता है, राइट, दैट्स वाई द वर्ड हियर यूज्ड इज रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिपोर्टेबल सेगमेंट, मतलब जितने सेगमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग आपने आइडेंटिफाई कर लिया है। रिलेटेड पार्टी यू हैव आइडेंटिफाइड, आप अगर देखो तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके। तो जो भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बेसिकली उसके रिगार्डिंग ही हम लोग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मंगाते हैं। एप्रोप्रिएटनेस एंड कंप्लीटनेस ऑफ परमानेंट एंड करंट पीरियड कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट इंक्लूडिंग द एलिमिनेशन ऑफ इंटरग्रुप ट्रांजैक्शन, मतलब आपने परमानेंट और करंट पीरियड की कंसोलिडेशन एडजस्टमेंट प्रॉपरली कर लिया है। उसके बाद है रिपोर्टिंग, हाउ वी विल रिपोर्ट, फाइन। दिस पैरा सेज दैट दो सिचुएशन हो सकते हैं इन ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट पेरेंट के जो ऑडिटर है वो ही कंपोनेंट के भी ऑडिटर है, ओके, जो कंपोनेंट को हम लोग CFS में इंक्लूड कर रहे हैं, या पेरेंट के जो ऑडिटर है वो नहीं है ऑडिटर कंपोनेंट के, राइट, एंड देयरफॉर यूजेस द वर्क ऑफ अदर ऑडिटर इन द ऑडिट। सो कहता है ऑडिटर शुड वाइल प्रिपेयरिंग द रिपोर्ट ना रिक्वायरमेंट ऑफ ऐसे 700, 705, 706 एंड 600, इन सब ऐसे का ध्यान रखना है। 700 में फॉर्मिंग एन ओपिनियन, 705 में मॉडिफिकेशन, 706 में एम्फेसिस ऑफ मैटर्स एंड अदर मैटर, एंड 600 में यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। तो ये सब हम लोगों को कंसिडर करना है ड्यूरिंग आवर ऑडिट। नाउ रिपोर्टिंग के कुछ सेक्शंस हैं, ये ध्यान से देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब पेरेंट्स ऑडिटर इज ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट, ओके, पहला पार्ट है। तो पहला पार्ट हम लोग पहले करते हैं कवर कि जब पेरेंट्स के ऑडिटर इज ऑल्सो द ऑडिटर ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट, तो वाइल ड्राफ्टिंग द ऑडिट रिपोर्ट द ऑडिटर शुड रिपोर्ट with the principles and procedures for preparation and presentation of CFS as laid down in relevant accounting standard have been followed, okay, ये रिपोर्ट करना है। और अगर कोई डिपार्चर या डेविएशन हुआ है, मतलब कोई अगर नॉन कंप्लायंस हुआ है, तो ऑडिटर शुड मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन द ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट में ये इंडिकेट करना है, सो डैट यूजर ऑफ CFS आर अवेयर ऑफ सच डेविएशन। यूजर्स मतलब जो भी ऑडिट रिपोर्ट को रेफर करेंगे उनको पता चले कि इस कंसोलिडेशन में किस पार्ट पे डिफरेंस है, राइट। Now the next point, auditor should issue an audit report expressing opinion कि whether CFS give a true and fair view of state of affairs of a group as on balance sheet date, and as to whether consolidated profit and loss statement gives us true and fair view result of consolidated profit and loss of the group for the period under audit। मतलब बैलेंस शीट के केस में ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स, एंड प्रॉफिट एंड लॉस के केस में ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ रिजल्ट, राइट। और यहाँ पे ग्रुप लेवल पे हमें ओपिनियन देना है। Where the consolidated financial statement also include a cash flow statement, the auditor should also give the opinion on true and fair view of cash flow presented by the CFS। अगर consolidated cash flow भी present किया गया है, so in that case auditor need to express their opinion on the cash flow also। तो ये जो केस था, ये कौन सा केस था, जब पेरेंट ऑडिटर और कंपोनेंट के ऑडिटर सेम है, राइट। अब आते हैं when the parent auditor is not the auditor of all its component, not the auditor। In a case where parents auditor is not the auditor of all the component included in the CFS, the auditor of the consolidated financial statement should also consider the requirement of SA 600, क्योंकि SA 600 is using the work of other auditor। फिर कहता है as prescribed in SA 706, if auditor consider it necessary to make reference to the audit of other auditors, the auditor's report on the CFS should disclose clearly the magnitude of the portion of financial statement audited by the other auditor। This simply means that SA 706 के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर ऑडिटर को ऐसा नेसेसरी लगता है कि हम अपने ऑडिटर्स रिपोर्ट में, मतलब CFS की ऑडिटर रिपोर्ट में ये इंडिकेट करना चाहते हैं, हम ये रेफरेंस देना चाहते हैं दैट कितना पोर्शन जो अदर ऑडिटर ने किया है ऑडिट, ओके, क्योंकि दिस केस इज व्हेन पेरेंट्स ऑडिटर इज नॉट द ऑडिटर ऑफ ऑल इट्स कंपोनेंट। सो in that case what the auditor can do, they should disclose clearly the magnitude of the portion of financial statement audited by the other auditor, okay। CFS के auditors report में he will indicate this may done by stating aggregate rupee amount or percentage of total asset, revenue and cash flow component included in the consolidated financial statement not audited by the parents auditor। कहता है कि अब ये जो हमें indicate करना है ना that कितना पोर्शन है जो कि अदर ऑडिटर ने ऑडिट किया है, ओके। फॉर
this purpose, what the parent auditor will do, he will just indicate it in the form of either aggregate rupee amount or percentage of the total asset, revenue or cash flow. Okay, means basis all these parameters, means any of these parameters parent auditor can indicate that कितना portion है जो कि उन्होंने ऑडिट नहीं किया है बट कोई और ऑडिटर ने किया है ऑडिट. Total asset, revenue and cash flow not audited by the parents auditor should be presented before giving effect to permanent and current period consolidation adjustment. इस दोनों एडजस्टमेंट के पहले ये सारी चीज़ हम लोगों को डिस्क्लोज करना है. asset, revenue, cash flow that are not audited by the parents auditor. Okay, means it is also a kind of disclosure that where the parent auditor is not auditor of all its component, तो the total asset, revenue, cash flow not audited by the parents auditor उनको हम लोग प्रेजेंट करेंगे before giving effect to the consolidation adjustment. Okay, the reference in the report of the auditor on consolidated financial statement to the fact that part of the audit of a group was made by other auditor is not to be considered as a qualification. मतलब ये जो रेफरेंस दिया जा रहा है ना, ये जो रेफरेंस दे रहे हैं ना रिपोर्ट में ऑफ CFS, इस फैक्ट के बारे में कि ऑडिट ऑफ द ग्रुप वॉज मेड बाय द अदर ऑडिटर, मतलब ये जो पार्ट, ओके, कुछ पार्ट जो ऑडिट है वो ग्रुप का किसी अदर ऑडिटर ने किया, ये क्वालिफिकेशन नहीं है. सेक्शन 705 में जो क्वालिफिकेशन या मॉडिफिकेशन करते हैं ऑडिट रिपोर्ट पे, दिस इज़ नॉट अ क्वालिफिकेशन, इट इज़ ओनली अ रेफरेंस दैट ये जो पूरे ग्रुप का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट है इसका कुछ पोर्शन का मैंने किया है, कुछ पोर्शन का अदर ऑडिटर ने किया है. सो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन बट रैदर एज एन इंडिकेशन ऑफ द डिवाइडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन द ऑडिटर ऑफ द पेरेंट एंड इट्स सब्सिडरी. मतलब दिस इंडिकेशन इज ओनली शोइंग दैट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थे जो कि हम लोगों ने आपस में डिवाइड किया था, राइट. द नेक्स्ट इसके बाद का हेडिंग है व्हेन द कंपोनेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अंडर एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट दैन दैट ऑफ पेरेंट. मतलब कि कंपोनेंट का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना वो किसी और फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया हुआ है एज कम्पेयर टू द पेरेंट का फ्रेमवर्क. ओके, जो कि आइडियली हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि बोथ शुड बी सेम. द टेक्स्ट सेज दैट पेरेंट में हैव कंपोनेंट लोकेटेड इन मल्टीपल ज्योग्राफी. मतलब आपके जो सब्सिडी एसोसिएट और या जॉइंट वेंचर है ये इंडिया के बाहर बहुत जगह हो सकते हैं और वो जो अप्लाई करेंगे गैप दैट इज डिफरेंट दैन दैट ऑफ पेरेंट इन प्रिपेयरिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इंडिया में जो पेरेंट है वो जो गैप एप्लीकेबल वो जो गैप अप्लाई कर रहे हैं इन प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑब्वियसली जो कंपोनेंट के गैप होंगे वो डिफरेंट होंगे, राइट. तो फॉरेन कंपोनेंट प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट under different financial reporting framework which may be well known framework such as US GAAP या फिर IFRS, मोस्टली इसके अकॉर्डिंग बनते हैं. ओके, कोई अगर फॉरेन में तो, और द लोकल गैप ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कंपोनेंट, या कोई और अगर गैप हो जिससे मीन्स वेयर द जुरिडिक्शन इज फॉलिंग, राइट, तो उसके अकॉर्डिंग दे विल प्रिपेयर. अब लोकल कंपोनेंट ऑडिटर में बी अनेबल टू रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड यूजिंग द पेरेंट्स गैप बिकॉज ऑफ देयर अनफेमिलियरिटी विद सच गैप. मतलब वहाँ के जो ऑडिटर होंगे वो यहाँ के गैप के अकॉर्डिंग ऑडिट नहीं कर पाएंगे, ओके, बिकॉज दे आर नॉट फेमिलियर. नॉट इज टेलिंग दैट व्हेन अ कंपोनेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड अंडर एन अकाउंटिंग फ्रेमवर्क दैट इज डिफरेंट दैन दैट ऑफ फ्रेमवर्क यूज्ड बाय पेरेंट. पेरेंट के फ्रेमवर्क से अगर अलग है कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फ्रेमवर्क, सो बाय यूज ऑफ तो द पेरेंट्स मैनेजमेंट परफॉर्म अ कन्वर्सन ऑफ द कंपोनेंट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्रेमवर्क यूज्ड बाय कंपोनेंट टू द फ्रेमवर्क अंडर विच द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड. करेक्ट इतना है दैट अगर कंपोनेंट का फ्रेमवर्क डिफरेंट है, कंपोनेंट का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग बना है, इफ़ दैट इज डिफरेंट, तो जो पेरेंट है ना, पेरेंट का जो मैनेजमेंट है वो कन्वर्ट कर देंगे कंपोनेंट के ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फ्रॉम फ्रेमवर्क जिसमें था टू द फ्रेमवर्क जिसमें होना चाहिए, दैट इज CFS जिसमें बना है. ओके, फिर ये कन्वर्सन का जो एडजस्टमेंट है इसको ऑडिट करेगा प्रिंसिपल ऑडिटर टू इंश्योर दैट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपोनेंट इज सुटेबल एंड एप्रोप्रिएट फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन. मीन्स प्रिंसिपल ऑडिटर विल चेक दैट ये जो कंसोलिडेशन के लिए एडजस्टमेंट, ये जो कन्वर्सन के लिए जो एडजस्टमेंट हो रहा है ना, ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट है और उस कंपोनेंट को हम लोग कंसोलिडेट कर सकते हैं नहीं. अ कंपोनेंट में ऑल्टरनेटिवली प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स अकॉर्डिंग पॉलिसी. अब देखिए यहाँ तक था कन्वर्सन कि कन्वर्सन कर सकता है, ओके. इसके अलावा एक ऑल्टरनेटिव है यहाँ पे कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बना ले ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट्स अकाउंटिंग पॉलिसी. ओके, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रहने दो, किसी भी तरह का एडजस्टमेंट ना करे, एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना ले बेसिस द फ्रेमवर्क यूज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पेरेंट. तो एज आउटलाइन द ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल टू फैसिलिटेट द प्रिपरेशन ऑफ ग्रुप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ठीक है, मीन्स ऐसा करने से ग्रुप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाएगा. द ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल वुड नॉर्मली कंटेन, देखिए एक ना ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल बनता है जिसमें सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है कि किस तरह का अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करना है एंड ऑल. तो वो जो ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी है वो उसमें मेंशन रहता है ऑल द अकाउंटिंग पॉलिसी इंक्लूडिंग रेलेवेंट डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट विच आर कंसिस्टेंट विथ
रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अंडर विच द ग्रुप के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर हुए हैं। ओके, उस मैनुअल में सारा कुछ लिखा होता है, तो वो मैनुअल को देखते ही एक सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना लिया जाएगा। ओके, फिर कहता है लोकल कंपोनेंट ऑडिटर कैन देन ऑडिट एंड इशू एन ऑडिट रिपोर्ट ऑन द कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी। अब ये जो नया जो ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो कंपोनेंट ने दूसरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया उसका ऑडिट होगा। कहता है लोकल कंपोनेंट ऑडिटर कैन देन ऑडिट एंड इशू एन ऑडिट रिपोर्ट ऑन द कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डेंस विद ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी। ये ग्रुप अकाउंटिंग मैनुअल में देख के ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया था ना उसका ऑडिट होगा और उस पर रिपोर्ट भी इशू होगा, राइट। फिर when applying the approach of using group accounting policy as financial accounting framework for component to report under, the principal parent auditor should perform procedure necessary to determine compliance of group accounting policy with gap applicable to the parent financial statement। कहता है कि अब ये अगर अप्रोच फॉलो हुआ ना कि ग्रुप अकाउंटिंग पॉलिसी के अकॉर्डिंग बनाया है तो उसका भी मतलब कि द पेरेंट ऑडिटर विल चेक दैट प्रॉपरली उस चीज़ को फॉलो किया गया है कि नहीं एज पर द गैप दैट आर एप्लीकेबल टू द पेरेंट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। This ensures that the information prepared under the requirement of group accounting policy will be directly usable and relevant for the preparation of CFS by the parent entity। Okay, मतलब इस चेक करने से पेरेंट एंटिटी को पता चलेगा that yes this component is now suitable for the purpose of consolidation, eliminating the need for auditing by the auditor the differences between the basis used for component financial statement and that of consolidated financial statement। ठीक है, सेम बात है। The principal auditor can then decide whether or not to rely on the component audit report and make reference to it in the auditor's report on the CFS। तो ये सब चेक करने के बाद प्रिंसिपल ऑडिटर विल डिसाइड कि मैं रिलाई कर सकता हूँ नहीं हो कि नहीं कंपोनेंट के ऑडिट रिपोर्ट पे। कंपोनेंट ऑडिट रिपोर्ट मीन्स व्हाट, मैंने अभी बोला ना कि अगर सेपरेट अकाउंट बन रहा है ना यहाँ पे तो फिर यहाँ पे द लोकल कंपोनेंट ऑडिटर यहाँ पे विल सी लोकल कंपोनेंट ऑडिटर ऑडिट करेगा और इशू करेगा ऑडिट रिपोर्ट, फाइन। तो सेम यहाँ पे दिया हुआ है रेफरेंस कि प्रिंसिपल ऑडिटर कैन डिसाइड वेदर और नॉट टू रिलाई ऑन कंपोनेंट के ऑडिटर रिपोर्ट एंड मेक रेफरेंस टू इट इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑन द CFS। CFS के ऑडिटर्स रिपोर्ट में उसका रेफरेंस हम दे सकते हैं या नहीं, राइट। फिर हेडिंग है जब कंपोनेंट का ऑडिटर रिपोर्ट अंडर एन ऑडिटिंग फ्रेमवर्क डिफरेंट देन दैट ऑफ पेरेंट। देखिए पिछला जो था उसका अकाउंटिंग फ्रेमवर्क अलग था, यहाँ पे कंपोनेंट का जो ऑडिटर रिपोर्ट है ना वो डिफरेंट ऑडिटिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग है, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें क्या करना है, नॉर्मली ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग CFS आर परफॉर्म्ड अंडर ऑडिट स्टैंडर्ड जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। मीन्स हम लोग का जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग जनरली CFS का भी ऑडिट होता है या स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का भी ऑडिट होता है। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन कंसिस्टेंसी ऑफ ऑडिटिंग फ्रेमवर्क एंड टू इनेबल द पेरेंट ऑडिटर टू rely and refer to the other auditors audit report in their audit report on CFS। देखिए CFS के ऑडिटर्स रिपोर्ट में हमें कंपोनेंट के स्टैंड अलोन ऑडिट रिपोर्ट को रेफर करना होता है, राइट। तो अगर वो किसी और ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बना होगा तो हमें प्रॉब्लम होगा। तो उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए व्हाट वी विल डू, द कंपोनेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड ऑल्सो बी ऑडिटेड अंडर अ फ्रेमवर्क दैट करस्पॉन्ड टू इंडियन GAAS, दैट इट मीन्स जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया। सिंपल सी बात है, अगर उसमें दूसरा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो हुआ है ना उसका फिर से ऑडिट करवा लेंगे एज पर इंडियन GAAS, फाइन। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वन सेकेंड, कहता है द कंपोनेंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी ऑडिट करा लेंगे अंडर अ फ्रेमवर्क दैट करस्पॉन्ड टू इंडियन GAAS। बहुत सिंपल था ये तो। फिर कंपोनेंट्स नॉट ऑडिटेड, अगर कोई कंपोनेंट का ऑडिट ही नहीं हुआ है, सो इन दैट केस व्हाट वी विल डू, सी generally the financial statement of all components included in CFS should be audited or subject to audit procedure in context of multi-location group audit। generally तो audit हो जाना चाहिए। such audit and audit procedure can be performed by auditor reporting on the CFS or by the component auditor। अब वो या तो CFS वाले ऑडिटर करे ऑडिट या फिर कंपोनेंट के कोई अलग ऑडिटर है। अब वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर कंपोनेंट कंटिन्यू टू रिमेन अनऑडिटेड, किसी का अगर ऑडिट नहीं हुआ है तो ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑन CFS should consider unaudited component in evaluating a possible modification to his report on the CFS। CFS के ऑडिट रिपोर्ट में जो भी मॉडिफिकेशन करना होगा ना उसके लिए ही विल कंसिडर अनऑडिटेड कंपोनेंट। ऑब्वियसली आपको जब नेगेटिव कमेंट डालना है और तो आपका कोई वीक साइड है तो हम लोग वीक साइड को ही देखेंगे, और ये कंपोनेंट का ऑडिट नहीं हुआ, ये अनऑडिटेड है, इट इज़ अ वीक साइड, राइट। तो इसीलिए पॉसिबल मॉडिफिकेशन जो देखना है ना अपने रिपोर्ट में, ही विल कंसिडर ओनली जो अनऑडिटेड वाला कंपोनेंट है उसको। फिर कहता था इवैल्यूएशन इज नेसेसरी बिकॉज द ऑडिटर हैज़ नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस रिलेशन टू सच कंसोलिडेटेड अमाउंट बैलेंस। अब देखिए ये इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी है कि इसके रिगार्डिंग कुछ मॉडिफिकेशन होना चाहिए कि नहीं, बिकॉज जो अनऑडिटेड है उसके लिए हम सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं।
right? So in such cases, auditor should evaluate both qualitative and quantitative factors on the possible effect of such amount remaining unaudited when reporting on CFS using the guidance provided in SS 705. मॉडिफिकेशन होता है इसमें, ठीक है, ओपिनियन का मॉडिफिकेशन होता है SS 705 में। तो कोई कंपोनेंट अगर अनऑडिटेड रह गया तो वी विल जस्ट कंसिडर द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ सच अनऑडिटेड कंपोनेंट on the audit report of consolidated financial statement. Okay, so glossary is given and this chapter is over. This glossary एक बार देख लेना आप लोग, इसमें terms दिए हुए हैं, whatever terms we have seen in this chapter ना, and other terms that are defined in Ind AS that is also written here, and in the next page also it's there. Then test your knowledge. Here is the theoretical question, multiple choice question, just go through all this. Okay, so that's it from my side for this chapter. Thanks for listening. Thank you.